let's take a look at, we will take a look at the RCs. We'll try to see what sense we can make out of them. Then we'll label the questions as also logical or illogical, or if or there are some questions, 4 or 5 questions where I don't agree to the answer given. I've gone through their explanations also, but I don't because again explanation तो आप justify करने के लिए कैसे भी बना सकते हो, right? So तो देखते हैं. So the first one, see, initially I was very happy. If you ask me, the initial first few questions and the first RC and all were pretty okay. So I was kind of little surprised, pleasantly surprised that okay, maybe they've improved. Because initially I saw when SimCAT 5, 6 वगैरह में रिव्यू किया था मैंने 9, 8, 9 या कुछ भी, तो उसमें जो पैरा कंप्लीशन थे वो दैट दे वर हॉरिबल, दे वर absurd. इनफैक्ट अपने मन से ये लोग बीच बीच में सेंटेंस डाल के कुछ पैरा कंप्लीशन बना रहे थे. एंड आई पॉइंटेड दिस आउट आल्सो. And then maybe somebody somewhere got wise or they listened or whatever. Now उन्होंने अब उल्टा कर दिया है. Now they made all 3 para completions were very very easy this time. तो इनफैक्ट अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत पैरा कंप्लीशन कर रखा हो तो वो तीनों तो उसके लिए एक तरह से फ्री गिफ्ट है, as we will see. Summary, okay, summary again. Initially, I mean they've been known to be, they've been notorious to be very bad for summaries. Uh, I mean, not just this year, but it's been there prevalent, horrible summaries. But this time they improved a little bit. So there again, I found, and para odd one out, one was okay, one was a little iffy, but VA overall was pretty easy and doable, and one should have done maybe at least, they should have got 5, 6 correct, 5 at least correct here out of 8. So let's look at the first one. When something traumatic happens, a car accident or witnessing an act of violence, your brain starts working overtime to process and file the experience. Brain is like filing cabinet. Traumatic events like massive piles of paper overwhelm. This overload can lead to memories being stored in a disorganized, causing them to resurface. तो इस तरह से कोई भी ट्रोमैटिक उसमें ये बोल रहा है कि आपकी मेमोरी के ऊपर ओवरलोड हो जाता है ट्रोमैटिक इवेंट का. लेकिन अगर आप कुछ टेट्रिस कोई गेम होगा, वी डोंट नो व्हाट इट इज, यू डोंट इवन नीड टू नो, अगर करोगे तो फिर मेमोरीज इम्प्रिंट नहीं होगी. प्लेइंग अ विजुअली डिमांडिंग गेम engages the brain's visuospatial processing system, right? So when you focus on shifting the shapes into neat rows, you interrupt the intrusive memory formation. तो यही बताया जा रहा है कि आपका अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई कार एक्सीडेंट या कुछ हुआ है, उसके बाद टेट्री करके गेम खेल लो आप, तो वो मेमोरी नहीं बनेगी आपकी, राइट? disorderliness disorderliness in the brain causes trauma, but engaging in such tasks that occupy one's memory can reduce PTSD symptoms. Disorderliness in the brain causes trauma. यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है, right? See here, trauma is the basic thing that triggers everything else. So disorderliness in the brain causes trauma. This is a huge distortion, and the options this should be eliminated straight away, right? तो यहीं पे इसको बाहर कर देते हैं. Trauma overwhelms the brain memory system, but research suggests that playing Tetris after a traumatic event can prevent intrusive memories from forming. Looks fair enough. Right? Looks all right. We'll keep it. Shortlist करने लायक है, but let's. Memories in the brain are affected by trauma. Yet post-trauma activities that occupy visual processing prevent this. तो memories are affected by trauma, ठीक है भाई, लेकिन पोस्ट ट्रॉमा एक्टिविटीज कौन सी है? यहाँ तो बहुत स्पेसिफिक बताया कि प्लेइंग टेट्रिस, है ना? ये कोई इन जनरल नहीं बताया पोस्ट ट्रॉमा एक्टिविटीज के नाम से कोई कैटेगरी बना दी हो. सो देयरफॉर दिस कैन बी आल्सो इजीली थ्रोन आउट. Playing visually demanding games after trauma prevents PTSD by disrupting memory storage, which otherwise becomes disorganized and distressing. Now ये second थोड़ा सा close है D के, B के. Playing visually demanding games after trauma. Now why is this wrong? Because first of all, visually demanding games, there is no category as such being given in the passage here. He's saying very specifically there is a game called Tetris. Yes, Khushi. सर मैंने भी वैसे बी एंड डी शॉर्टलिस्ट किया था. देन Right. टेट्रिस वाली लाइन के बाद इट इज रिटन प्लेइंग अ विजुअली डिमांडिंग गेम. तो Hmm. मैंने कहा जब इसने ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मेंशन कर Hmm. दिया तो बिल्कुल टेट्रिस पे जाना शायद गलत होगा. दैट्स व्हाई एंडेड अप मार्किंग डी. No, but see, what he is suggesting here is that Tetris is a visually demanding game. See, what he's saying is that playing a visually demanding game shortly after traumatic experience engages the brain's visuospatial processing system. So, which means he is specifically talking about Tetris. See, he doesn't say that playing visually demanding games like Tetris. सपोज ऐसा लिखा होता वहां पे, देन आपकी बात ठीक है कि विजुअली डिमांडिंग गेम्स जो है एक जनरल कैटेगरी बना दी, है ना? विच इज वाई यहाँ पे क्योंकि बहुत स्पेसिफिकली उसने टेट्रिस बोला है, और टेट्रिस क्या है वो समझाने के लिए उसने बता दिया इट्स अ विजुअली डिमांडिंग गेम.
right? Yes, Sonali. Hmm. Sir, even I marked D because I felt that Tetris was very narrow and also that specifically intrusive memories बोल रहे थे वो, that's why मुझे थोड़ा narrow लगा, तो इसलिए मैंने भी किया। इसलिए आपने एलिमिनेट कर दिया बी को? हाँ, नहीं 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 नहीं। देखो दूसरा, सी, intrusive memories भी थोड़ा मुझे लगा कि ऑफ नहीं है। नहीं, एक मिनट एक मिनट। देखो देखो, इसमें एक और फर्क है ना, एक और डिफरेंस है। यस क्षितिज, लेट मी हियर फ्रॉम क्षितिज। So same doubt only. Like while going through the passage, first like मेरे को लगा it is talking about कि study ने सिर्फ Tetris का ही try करा था. They tried कि Tetris के वजह से it was happening like this. But the real outcome was कि if any playing of a visually demanding game के साथ भी ये हो रहा है. So it's like not just like Tetris was for a generic one कि visually demanding game के लिए. That's why I went नहीं for नहीं, D. ओके ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने टेट्रिस बोला। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, प्रिवेंट्स पीटीएसडी बाय डिसरप्टिंग मेमोरी स्टोरेज। सी, मेमोरी स्टोरेज थोड़ी डिसरप्ट हो जाता है। वो बोल रहा है कि इंट्रूसिव मेमोरी फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद पीटीएसडी डज नॉट गेट फॉर्म, right? So PTSD by disrupting memory state storage, which otherwise becomes disorganized and distressing. What otherwise becomes disorganized? Memory storage becomes disorganized or what? तो see, ये जो है memory which otherwise become disorganized and distressing, memory storage है, क्या लिखा है? Traumatic events, this overload can lead to memory being stored in a disorganized way, causing them to resurface as intrusive and distressing thoughts. तो ये नहीं बोल रहा है कि वो डिसरप्ट हो जाएगा मेमोरी स्टोरेज, वो मेमोरी स्टोरेज जो है आपका ओवरलोड हो जाएगा। सो ओवरलोड होने के कारण ये प्रॉब्लम है। तो इसमें मतलब सी, कंपेयर टू बी, ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स हियर इन डी। सो वी कैन नॉट से दैट जस्ट वन। ये भी प्रॉब्लम है, डिमांडिंग गेम्स नहीं है वहां पे, टेट्रिस साफ साफ लिखा हो। और दूसरा ये भी है कि आप प्रिवेंट्स पीटीएसडी by disrupting memory storage। सी, इसमें जैसे है कि ट्रॉमेटिक इवेंट कैन प्रिवेंट इंट्रूसिव मेमोरीज फ्रॉम फॉर्मिंग, ये बहुत क्लियरली बताया गया है। तो इसलिए इसमें बी बहुत क्लियर आंसर है। यस खुशी। सर एक जनरल डाउट था इससे अलग, जैसे इसमें पीटीएसडी लिखा हुआ है, प्रिवेंटिंग पीटीएसडी। नाउ पैसेज में भी नहीं बताया वैसे तो, बट अगर कहीं किसी पैसेज में फुल फॉर्म भी दिया एंड शॉर्ट फॉर्म भी दिया है, किसी ऑप्शन इज लुकिंग टू क्लोज टू यू एंड उसमें शॉर्ट फॉर्म दी है, तो कैन वी एलिमिनेट दैट नहीं तो ऑप्शन बेसिस की? नहीं तो यहाँ पे पीटीएसडी दे दिया ना, यहाँ पे भी पीटीएसडी को पूरा हाँ, कवर करा। इसमें तो है ये चीज लाइक हम्म, फॉर फ्यूचर पर्पस कि अगर कहीं पे शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म दोनों दिया है हम्म, एंड हमें किसी ऑप्शन बहुत क्लोज लग रहा है बट उसमें शॉर्ट फॉर्म है, तो क्या हम उस बेसिस पे एलिमिनेट कर देंगे उसे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो दूसरा ऑप्शन है उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो। सी, यू हैव टू बैलेंस इट आउट, देयर हैज टू बी एब्सोल्युटली नो डिस्टॉर्शन, देन दिस थिंग कम्स इन। ये फिर बाद में आता है। ओके, चलो, ऑल राइट, ग्रेट। नाउ दिस वाज वेरी इजी। ओके, तो इसका क्लू क्या है? इंस्टेड दे इन्वेड अ होस्ट सेल एंड असेंबल न्यू वायरल पार्टिकल्स, और दीज न्यूली फॉर्म्ड पार्टिकल्स, राइट? बहुत ही क्लियरली यहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड पार्टिकल्स बता दिया उसने, राइट? एंड दीज न्यूली फॉर्म्ड पार्टिकल्स आर दीज न्यू वायरल पार्टिकल्स। तो बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन डन इन 15 to 20 सेकेंड्स एट मैक्स। आप उसको सी पे को मार्क करो और आगे चलो, बिकॉज दिस इज अ गिफ्ट, राइट? Unlike living cells, viruses lack this. Instead, they invade a host cell and hijack and assemble these newly formed particles. यहाँ पे कोई particle का नाम नहीं दिया हुआ है. There's absolutely no mention of any particle here, and therefore you have to put this statement into, and that's it. Okay, so easiest one of the easiest question of the lot. So which is why I was pretty okay that okay, two questions I've seen, both are logical. So let me see now uh, the passage, right? What does it mean to be optimistic? We think of optimism, the expectation of things will work out. While we might accept such expectation of motivational value, make it easier to life to deal with struggle and strife, we might feel dubious about it from an intellectual perspective. Optimism, after all, delusional. Realism or outright pessimism might seem more justifiable given the troubles of present and uncertainties, right? So आज का जो जमाना है, जितनी अनसर्टेनिटी है, ट्रम्प सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, फिर रात को कुछ और ही बोल देता है, right? And we are seeing geopolitics is also now like a T20. It is not like a test match or something. So equations keep changing overnight. So in this uncertainty wale time mein, he's saying optimism is little delusional. Rather, realism or outright pessimism is more justifiable. Right? Those of us familiar with Voltaire's celebrated novel Candide might be reminded of his character, Dr. Pangloss, and his refrain that all must be for the best in the best of all possible worlds.
Pangloss and his company are subjected to disaster, war, mutilation. His article of faith seems increasingly blind. Pangloss, the professor of metaphysico, theologico, cosmology, whatever it is a vicious caricature of the great German polymath Gottfried Leibniz, and his catchphrase is Voltaire's snappy formulation of German's attempt to provide a logical argument for optimism. तो यहाँ पे एक वोल्टेयर करके जो फ्रेंच फिलोसफर है, उसका नॉवल है, उसमें डॉक्टर पेनग्लॉस है, जो कि बहुत ही इटरनल ऑप्टिमिस्ट जिसको बोलते हैं, राइट. ही ऑलवेज, वेदर द सिचुएशन इज डिजास्ट्रस और व्हाटएवर इट इज, ही ऑलवेज thinks that he always keeps his faith, right? And it seems to be a caricature, मतलब कि एक तरह से कार्टून या कॉमेडी ऑफ ग्रेट एक जर्मन, अगेन एक जर्मन पॉलीमैथ या एक बहुत ही बड़ा एक अगेन फिलोसफर साइंटिस्ट था लीबनिज. तो उसका कैरिकेचर लगता है वो. Or really a theological argument. Leibniz didn't set out to explain why some people are perpetually cheerful about their prospects, or why an all-powerful, all-seeing, and all-loving God allows evil to exist in the world. This problem of evil has been debated for millennia, but it was Leibniz who first tried to reason his way. Inspiration came from his realization the path taken by light through a system of prism of mirrors always followed the optimal path from source to destination. He soon realized that many other phenomena followed similar principle of optimality, including perhaps the entirety of God's creation. तो Leibniz जो है, लीबनिट्ज ने एक थियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन दिया था ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्ट, राइट. तो इसने ये कहा कि देखिए, some people might say that when such evil also exists in the world, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, तो how can we remain optimist, right? Or is this then why does God allow all of these things, right? If God is there, then he should prevent all this, right? All loving God is all loving, right? All powerful, all seeing. Why does he allow all this? तो इस प्रॉब्लम को बहुत डिबेट किया गया है, लेकिन लीबनिज ने उसका एक आंसर बताया कि उसका रियलाइजेशन ये था कि लाइट जो है, पाथ टेकन बाय लाइट टू सिस्टम ऑफ प्रिज्म्स फॉलोड द ऑप्टिमल पाथ. मतलब वो एक ऑप्टिमल पाथ लेती है, तो मतलब जो भी हम देख रहे हैं वो एक ऑप्टिमल है, मतलब बेसिकली दैट इज द बेस्ट दैट गॉड कुड क्रिएट, so we should accept it. That means there could be no other optimal world that could have been created by God, right? So this is a similar principle of optimality, including the entirety of God's creation. So he is trying to ये डॉक्टर पेनग्लॉस का नाम दिया उसने, और ये बताया कि वो एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट थे, एंड देन ही ब्रॉट इन लीबनिट्ज एंड his explanation as to how everything should be looked at as a from a principle of optimality. Yes, Ashish. सर इसमें जो एंड हिज कैच फ्रेजेस वॉल्टर स्नैपी, ये जो सेंटेंस है इसमें हिज किसको रेफर कर रहा है, और सेंटेंस का मतलब ही समझ नहीं आया. कोई बात नहीं, देखो मेरा ये कहना है कि मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये सब चीजें अगर नहीं भी समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं. आपको ओवरऑल ब्रॉडली समझ में आना चाहिए कि इस पैसेज का मतलब क्या है, मतलब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है. वो डॉक्टर बैनलॉस के ऊपर एक क्वेश्चन है, राइट. अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इज अ विशियस कैरिकेचर ऑफ द ग्रेट जर्मन पॉलीमैथ गॉटफ्राइड विलियम लीबनिज. तो ये कह रहे हैं, कोशिश कर रहा है कि जो डॉक्टर, ये जो पेनग्लॉस है, ये एक तरह से एक कार्टून है इस आदमी का, मतलब उसी का एक रूप है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड तरीके से, लीबनिट्ज का. और हिज कैच फ्रेज इज वोल्टेयर्स स्नैपी फॉर्मुलेशन ऑफ जर्मन्स अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अ लॉजिकल आर्गुमेंट फॉर ऑप्टिमिज्म. और जो उसका कैच फ्रेज है, पॉल पेनग्लॉस का कैच फ्रेज नहीं, तकिया कलाम जिसको बोलते हैं, जो कि वो बार बार बोलता है. तो वोल्टेयर का एक फॉर्मुलेशन है इस बेस्ड ऑन गॉडफ्राइज कुछ अटेम्प्ट कि लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहा था वो ऑप्टिमिज्म का. तो मतलब ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट ये पेनग्लॉस जो है, ये भी एक तरह का गॉटफ्राइड लीबनिट्ज का एक तरह से कार्टून टाइप का कैरेक्टर है, और इसके पास भी उसी जैसे आर्गुमेंट है ऑप्टिमिज्म के, राइट. और रियली अ थियोलॉजिकल आर्गुमेंट, या फिर ये आर्गुमेंट जो है वो थियोलॉजिकल है, मतलब रिलीजन या गॉड से रिलेटेड. फिर उसने लीबनिट्ज के बारे में बता दिया, दैट्स इट. तो इस सपोर्ट ही कर रहा है ऑप्टिमिज्म को दोनों. सपोर्ट ही कर रहे हैं. So my suggestion is that if you don't understand one or two such sentences, no problem. Just understand the whole 60% passage भी समझ में आ गया तो हो जाएगा. Yes, Suparna. Okay, sir. So I just want to clarify that my understanding of optimality was that God wants to create a balanced thing, like balance करने के लिए. It's not that God cannot create world without evil, but वो balance out करने के लिए वो optimal जो possible हो सकता है वो बनाता है. So I was going with this balanced figure कि ठीक है, not impossible, but to manage करने के लिए वो ऐसा करता है. तो is it correct? देखो, आप बात ये है कि सपोज करो कि गॉड ने एक वर्ल्ड बनाई जिसमें सब बहुत सारा इविल है ना. नाउ सपोज देयर वाज एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड पॉसिबल इन विच देयर वाज नो इविल, बट देन देयर कुड हैव बीन समथिंग व्हिच वाज मोर डिजास्ट्रस देन दोज इविल्स. सो गॉड
created this world as an optimal. So what you're saying, balance is okay in that sense, that it is the best that could be there. इस तरीके से हमको देखना चाहिए कि उसमें भले ही evil है तो कोई बात नहीं, लेकिन evil is a lesser evil than maybe what could else have been there. ऐसा समझो आप कि उससे बेटर है ये, तो ये ऑप्टिमल तरीके ये हो सकता है, बस ये समझ लो आप। तो बैलेंस आपका जो वर्ड है वो ठीक है, कोई गलत नहीं। Leibniz argued that God could have chosen from many laws and ingredients when making the world. देखो वही बोल रहा है ये जो मैं अभी आपको बताया, बट सम कॉम्बिनेशन वुड नॉट बी इंटरनली कंसिस्टेंट। तो कई चीजें एक साथ हो नहीं सकती है ना। अगर सपोज करो वो इविल हटाया था कुछ और रखता, तो दो चीजें हो सकता है चलती नहीं साथ में। सो गॉड इन हिज विजडम चोज अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दैट लेड टू अ वर्ल्ड दैट वाज बोथ सिंपलेस्ट इन हाइपोथेसिस एंड रिचेस्ट इन फिनोमेना। है ना, जैसे अगर कोई हम दो इंग्रेडिएंट मिक्स करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक इंग्रेडिएंट जो है वो मतलब कोई ना कोई आपको साइड इफेक्ट देता है, लेकिन अगर वो नहीं हो इंग्रेडिएंट तो वो होल चीज बन ही नहीं सकती है वो। You know, let's say you use oil or ghee or some fat for cooking food. Now people say that इससे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगी, ये हो जाएगी, बट अगर आप उसको यूज ही नहीं करोगे तो आपको फूड बन ही नहीं सकता है। तो यू एक्सेप्ट सम बिट ऑफ अ साइड इफेक्ट्स इन ऑर्डर टू हैव अ सोल्यूशन। एटलीस्ट सोल्यूशन तो है आपके पास। तो गॉड ने भी वही किया। दैट माइट नॉट बी अ परफेक्ट वर्ल्ड, बट इट विल बी द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। व्हाइल देयर मे बी माइट many possible ways to make a world, there is only one optimal way, and this view of the world came to be known as optimal. तो लोग कहते हैं भाई ठीक है जो भी है जैसा भी है, लेकिन यही है जो सबसे अच्छा है, तो यही ऑप्टिमिज्म। Leibniz view did not win instant acclaim. Critics sniffed, but it was Voltaire half a century who dealt the clean book. तो उसको पहले तो किसी ने भाव नहीं दिया इस सब बातों पे। क्रिटिक्स तो थोड़ा उसके मजाक ही उड़ा रहे थे, लेकिन वोल्टेयर ने काफी टाइम बाद ये इसको आगे लेके गया। कैंडिड कैंडिड जो वोल्टेयर का जो वर्क है उसमें ये चीज आई और वो काफी सक्सेसफुल हुई। इवन टुडे मेनी पीपल आर मच मोर फेवरेबल विद वोल्टेयर सटारिकल टेक रादर देन लीबनिस रैशनल वन। तो इसमें जो कैंडिड है उसने थोड़ा सटारिकल सरकास्टिक तरीके से इस चीजों को लिया है, तो वो ज्यादा हिट हो गया। लीबनिस का जो था वह रैशनल था। But was Leibniz onto something? The idea that many possible worlds intuitively appealing in a time when even fewer people accept the idea of a divine plan. Today, we think responsibility lies with us. That makes Leibniz optimism more appealing than it has been for centuries. We cannot see or understand the whole design. The key to making Leibniz version optimal relevant is to make best of all possible worlds an aspiration, not a statement of belief. The world and the future is always full of possibility. We can strive to make it the best. ये थोड़ा सा ज्ञान व्यान की बातें एंड में जाके उसने कर दी। ठीक है, तो आई होप द पैसेज इज क्लियर एंड लेट्स गो टू द क्वेश्चंस हियर। तो दिस वाज ओके, दिस वाज इंटरेस्टिंग, आई वुड से पैसेज ठीक था, कोई इतना खराब नहीं था, आई वुड से दिस इज स्टिल ओके। सो व्हिच इज सो एट टिल दिस पॉइंट इट इज ऑल गुड, so far so good. What is implied in the passage about the relationship between optimism and realism? इनिशियली आप अगर देखोगे तो ऑप्टिमिज्म और रियलिज्म दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बोल रहा है। ऑप्टिमिज्म इज डिल्यूजनल, रियलिज्म माइट सीम मोर जस्टिफाइबल, राइट? लेकिन ऐसा बाद में नहीं है, बाद में उसने दोनों को कोरिलेट कर दिया। ऑप्टिमिज्म इज डिल्यूजनल एज इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द ग्रिम नेचर ऑफ रियलिटी, ऐसा शुरू में हुआ था। एज एन एस्पिरेशन ऑप्टिमिज्म कैन को एग्जिस्ट विद रियलिस्टिक आउटलुक, तो उसने एंड में लिखा है ना कि एस्पिरेशन बना सकते हैं, राइट? वी कैन मेक इट एन एस्पिरेशन, द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल एन एस्पिरेशन। तो दैट मीन्स कि ऑप्टिमिज्म और रियलिज्म को एंड तक जाते जाते उसने मैच कर दिया, राइट? सो वी कैन कीप दिस। ऑप्टिमिज्म रिक्वायर्स ब्लाइंड फेथ एंड क्लैशेस विद रियलिस्टिक माइंडसेट, ये भी अगेन इसको दोनों को ऑपोजिट बता रहा है। दिस वाज द व्यू इन द बिगिनिंग, नॉट टुवर्ड्स द एंड। Without a divine view of suffering, optimism feels outdated. ये बिल्कुल ही I don't know from where he has got it. Totally wrong. Correct answer is B here. It's okay. It's not a bad question. It is logical. Okay. What is the purpose of mentioning Dr. Pangloss? तो डॉक्टर पैंगलोस को क्यों बताया गया है? तो डॉक्टर पैंगलोस के थ्रू इसने ये बताने की कोशिश की है कि लीबनीज को इंट्रोड्यूस किया है कि वो लीबनीज जैसा था, और प्लस ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने वो एक इटरनल ऑप्टिमिस्ट था, राइट? एंड देन तो लेट्स सी द ऑप्शंस। टू क्रिटिसाइज लीबनीज ऑप्टिमिज्म अनरियलिस्टिक, बिल्कुल गलत है। उसने तो डॉक्टर पैंगलोस को एक तरह से लीबनीज का ही वर्जन बताया गया है, तो फिर क्रिटिसाइज क्यों करेगा वो? टू शो हाउ सटायर ऑफन ट्विस्ट बिग आइडियाज टू मेक देम मोर पॉपुलर, ये सटायर का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है दैट दिस पैसेज वाज बेस्ड ऑन सटायर एंड देन डॉक्टर पैंगलोस's एग्जाम्पल वाज यूज्ड इन ऑर्डर टू शो दैट इट ट्विस्ट बिग आइडियाज टू मेक देम मोर पावरफुल एंड मोर पॉपुलर देन द रैशनल वन। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द आइडिया टू शो डॉक्टर पैंगलोस, राइट? इसलिए नहीं बताया उन्हें। टू कॉन्ट्रास्ट रिजिड ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म विद अ मोर होपफुल फ्लेक्सिबल काइंड, ये हम बोल सकते हैं कि जो रिजिड ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म है जो यहाँ पे बताया गया है, राइट, दिस वाज रिजिड ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म काइंड ऑफ, एंड देन यहाँ पे पैनग्लॉस वाला बताया गया है कि पैनग्लॉस जो है वो uh, ये है बेसिकली हिज ही बिलीव्स इन, और रादर जिस तरीके से ये लीबनिस के बारे में बताया गया है कि
he accept it as a principle of optimality, something like that, right? So to contrast rigid, blind optimism with a more hopeful, flexible kind. This looks okay. To show how religious optimism can lead to accepting injustice. Injustice बारे में कहीं पैसेज में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है. तो सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. बहुत अच्छा नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब इतना मजा नहीं आ रहा है इसको, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन भी कुछ समझ नहीं आ रहे. टू क्रिटिसाइज लीबनिट्ज़ ऑप्टिमिज्म एंड अनरियलिस्टिक व्हेन फेस्ड विद रियल सफरिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसने यही बता दिया कि पैनक्लॉस जो है उनके जैसे. सटायर वाला भी उसका पॉइंट नहीं है, तो यही बच गया मतलब इसको. सो रादर देन सिलेक्टिंग दिस, आई वुड से वी एलिमिनेट ऑल द अदर्स एंड देन व्हाटएवर रिमेन्स बिकम्स द आंसर. नॉट अ ग्रेट आंसर दो. यस कुशागर. सर इन द ऑप्शन बी आप एक बार पैसेज पे जा सकते हैं. सर इन द सेकंड लास्ट पैराग्राफ वहाँ पे जो लाइन लिखी है, when today many people are much more familiar with Voltaire's satirical take than Leibniz's rational one. तो इस लाइन को पढ़ के सर मैं बी और सी में बहुत कंफ्यूज हो गया था, फिर मैंने बी मार्क कर दिया. Even today, many people are much more familiar with Voltaire's satirical take than Leibniz's rational one. To show how satire often twists big ideas to make them more popular. Is it मतलब ये क्या डिस्टॉर्शन नहीं है इसमें? सटायर ट्विस्ट्स बिग आइडियाज. सी ट्विस्ट तो नहीं कर रहा ना उसको. इट इज बेसिकली दैट इट इज गिविंग अ सटायरिकल टेक. इट्स नॉट लाइक ट्विस्टिंग. दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो पैनग्लॉस है, पैनग्लॉस के अंदर कौन सा सटायर है? Pangloss and his company are subjected to disaster. His article of faith seems increasingly blind. Pangloss is a vicious caricature of German polymath. His catchphrase is this to provide a logical argument for optimism. So, can we say that, see, this passage is, see, ये कब सही होता? ये तब सही होता जब पूरा पैसेज कुछ सटायर के ऊपर होता, सरकाजम के ऊपर होता, तब आपकी ये फिर भी ये ज्यादा जस्टिफाइड होता. बट दैट इज नॉट रियली द पर्पज ऑफ. सी वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया ना, डॉक्टर पैनक्लॉस को बताया गया कि वो एक तरह से लीबनिज के जैसे, बिकॉज आगे का पार्ट पूरा लीबनिज लीड कर रहे हैं. तो लीबनिज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि कैंडिड के अंदर इन्होंने जो डॉक्टर पैनक्लॉस को डाला है वो बेसिकली लीबनिज का ही एक तरह से वर्जन थे, और बाद में फिर जाके वो काफी चल पड़ा वो. तो सी आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ ग्रेट contrast. Rigid blind optimism is a more hopeful, flexible kind. I mean, only thing is that the rest of the options did not seem too good. Yes, Khushi. सर मैं एलिमिनेट कर रहा था, मैंने एलिमिनेट थोड़ी जोर से बोलोगे, आपकी आवाज ही नहीं आ रही. इट ऑडिबल नाउ? हाँ हाँ सर मैंने एलिमिनेट करके सी तो कर लिया था, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था हाँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आया था, तो मैंने और मैंने छोड़ भी दिया इसे. वो अच्छा किया, कोई बात नहीं. सी अगेन वी विल कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस वेयर यू विल नॉट गेट द कॉन्फिडेंस, you will not feel very happy about it. I am also not feeling very happy about it, but we can't do anything, क्योंकि यही है. हाँ, मुझे अगर ये क्वेश्चन बनाना था तो मैं बिल्कुल नहीं बनाता ये, राइट? और फिर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं. दिस काइंड ऑफ वेग फीलिंग वुड नॉट हैव कम. सो एनीवे, लीव इट. ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लीबनिज ऑप्टिमिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. सी ऑथर्स का तो अच्छा एटीट्यूड है इसमें. सबसे पहले तो बात ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव नहीं है, ना ही न्यूट्रल भी है ना, बिकॉज अल्टीमेटली तो उसने यही कहा है, यही ऑप्टिमिज्म है जिसको हमको रखना चाहिए एस्पिरेशन के लिए. डिसमिसिव तो बिल्कुल ही नहीं. सिंपैथेटिक येट क्रिटिकल, बिल्कुल गलत है. अप्रिशिएटिव एंड रिफॉर्मिस्ट, यस, उसने कहा ना कि हमें एज एन एस्पिरेशन इसको रखना चाहिए. तो दिस लुक्स ओके. फिलोसॉफिकली इनकंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं. दिस इज फाइन. मतलब इसमें मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगी. इसमें लग रही है किसी को गड़बड़? एनी प्रॉब्लम यू, और यू वर एबल टू फिगर दिस आउट? तो ये और ये दोनों क्वेश्चन इजी है. इफ यू आस्क मी, द लास्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इजी. एनालॉजी ऑफ पाथ टेकन बाय लाइट थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रिज्म सर्व प्राइमरीली टू. तो ये जो यहाँ पे इसने बताया कि जो पाथ है, राइट, पाथ टेकन बाय लाइट फॉलो ऑप्टिमल पाथ, मेनी फिनोमिना सॉल्वर्स. तो ये वही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मतलब बेसिकली कई चीजें जो है वो भगवान जिस तरीके से बना देता है वो डिवाइन डिजाइन है, राइट, जो कि जैसे कि इसमें बताया गया है. तो emphasize how nature works through random chance, बिल्कुल नहीं. Argue that even in the best of the world some evil is unavoidable. See, this point is not
to make a point about evil or any XYZ. He's saying that जो भी path of light है, वो जो भी फॉल कर रही है, वो एक नेचुरल कोर्स है जो भगवान ने डिजाइन कर दिया है, और वही कोर्स है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है. Imply that we see evil comes from a limited perspective. Evil पता नहीं कहाँ से बार बार इसमें evil आ रहा है. यहाँ पे evil, see ये evil यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि it was Leibniz who first to reason his way to an answer. His inspiration came from his realization path taken by light through a system of prisms always followed the optimal path. That many other phenomena followed a similar, including perhaps the entirety of God's creation. फिर ये इसमें पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है. So we can say that show how nature's rules might reflect a divine design. That means जो नेचर के रूल्स हैं, जिस तरीके से लाइट बेंड होके आती है पाथ में, वो एक डिवाइन डिजाइन. तो इसलिए डी करेक्ट आंसर है. दिस इज ओके. यस शुक्र. सर आई हैड क्वेरी दैट लेविनिस तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑप्टिमिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए वो एग्जांपल लिया था गॉड एंड इविल वाला, तो उसको ही तो पूरा अंडरलाइन करके वो नेक्स्ट 3 पैराग्राफ को डिस्क्राइब किया था. सो दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज्ड. लाइक ऑप्शन डी मैंने एलिमिनेट किया था कि इतना ब्रॉडली कहीं पे नहीं दिख रहा था कि डिवाइन डिजाइन को हाईलाइट करते हुए. तो ये क्या है? ये पूरा डिवाइन डिजाइन नहीं है तो क्या है? ये क्या है? डिवाइन मतलब क्या होता है? गॉड. यस, गॉड. See, Leibniz did not set out to explain why some people are perpetually cheerful about their prospects, but why an all-powerful, all-seeing, and all-God-loving God allows evil to exist in the world. So he did not set out to explain evil. वो evil को factor नहीं कर रहा था वो. This problem of evil has been debated for millennia, but it was Leibniz who first attempted to reason his way to an answer. His inspiration came from his realization. तो मतलब ऐसा नहीं कि वो इविल को लेके अटक गया था, या इविल इज बिकम मतलब कोई इट्स बिकम अ सेंट्रल कैरेक्टर इन हिज एक्सप्लेनेशन. ऐसा नहीं है. वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है ना कि उसको सडनली रियलाइजेशन हुआ कि जो पाथ ऑफ लाइट उसने देखा प्रिज्म और मिरर से, वो एक ऑप्टिमल पाथ है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. और इसी तरह से बहुत सारे जो फिनोमेनन है वो भी यही फॉलो करते हैं. तो इसमें कहाँ ईविल की बात हो रही है? इसमें ईविल की बात कहाँ हो रही है? वहां से उसने उसका प्रेमिस वहां लेके चला, बट दिस इज नॉट टू सर्व दैट आर्ग्यू दैट इन द बेस्ट वर्ल्ड. बेस्ट वर्ल्ड क्या होती है? तो बेस्ट वर्ल्ड करके तो कोई चीज ही नहीं है. और व्हाट वी सी एज इविल कम्स फ्रॉम अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव, ऐसा तो कहीं पे भी कोई सजेशन नहीं है. व्हाट वी सी एज इविल, जो इविल देख रहे हैं वो इविल नहीं है, वो वाकई में वो तो हमारा लिमिटेड पर्सपेक्टिव, ऐसा थोड़ी बोल रहा है कहीं पे भी. तो ये तो कहीं से कहीं तक नहीं इन्फर कर सकते. ठीक है, तो देखो इसमें से आई वुड से दैट यस सर, आई अंडरस्टूड. this was easy, this was easy. Okay, this was maybe a absurd or illogical to some extent, but ठीक है, you can come at C because of you can eliminate the rest of them. And this one is maybe moderate, बोल सकते हो आप उसको, है ना? तो ठीक है, this passage was okay, I would say okay, but then when we go to the next passage, then the things start becoming a little murky. Platforms like Google, Facebook are not only shaping our economy, but society with questions of privacy, monopoly, power online. ये सब हमें पता है. Impacts on mental health. In democratic society, designing policies to mitigate such harm while preserving platform benefits, staying true to widely held values is difficult. Often involves balancing one's personal right. Yet across political lines, many Americans, big tech hold too much power. These monopolies squeeze consumers, workers, and other small businesses, while the business model of engagement throughout rage exacerbates society. A vigorous debate is underway about new rules. However, big tech lobbies have been trying to sidestep this democratic process by embedding restrictive digital rules into international trade agreements. Negotiated largely in secret, these rules would constrain efforts by governments to regulate privacy, data security, and market competition. तो ये हमें पता है सारी चीजें क्या हो रही हैं. Right? We know all these harms of social media, big tech, and how they are trying to sidestep this process, democratic process, by embedding restrictive digital rules. So international trade agreement में वो restrictive digital rules. See, different countries are trying to impose conditions and limits on their operations in their country, but these people are trying to bypass all of that, right? तो गवर्नमेंट्स जो है वो फिर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे प्राइवेसी, डिजिटल सिक्योरिटी और मार्केट कॉम्पिटिशन. Goal is to construct a global digital framework where dominant platforms can operate with minimal oversight. These rules, if enacted, would prevent governments from adopting and enforcing policies made to protect consumers and preserve competition. This approach echoes past trade negotiations used to protect corporate profits over public interest. तो ये बताया जैसे पास्ट में ट्रेड नेगोशिएशन होता है, वैसे इस तरह से डिजिटल फ्रेमवर्क बन रहे हैं कंट्रीज के, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको और कंपटीशन को प्रिवेंट प्रोटेक्ट किया जा सके और कंपटीशन को प्रिजर्व किया जा सके.
Just as big pharma used trade pacts to expand patent protection at the expense of affordable medicine, big tech is now pursuing trade-based constraints on digital government. Some of the rules being pushed would label most competitive policies as illegal trade barriers. This would tie the hands of governments attempting to curb platform dominance and protect smaller digital players. तो ये जिस तरीके के रूल्स पुश कर रहे हैं, तो उसमें जिस तरीके के रूल ये पुश कर रहे हैं, वुड लेबल मोस्ट कंपटीशन पॉलिसीज एज इलीगल ट्रेड बैरियर. तो अगर कोई कंट्री कोई कंपटीशन की पॉलिसी लगा देती है, तो ऐसा लगेगा कि कोई इलीगल ट्रेड बैरियर क्रिएट किया जा रहा है. तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कुछ कर नहीं पाएगी, बिकॉज इफ लेट्स से समबडी सेज दैट यू आर क्रिएटिंग अ ट्रेड बैरियर, देन द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट, and they will not be able to protect the smaller players. Other provisions would grant platforms and data brokers sweeping control over personal data, limiting countries' ability to enforce privacy laws, restrict cross-border data flows. Also, it takes the ability of government to review algorithmic decision making. These systems can determine access to loans, jobs, housing, and legal outcomes. Yet, big tech is pushing rules that would prevent authorities from inspecting such algorithms, even to guard against discrimination or exploitation. तो ये अपने algorithms को भी देखने नहीं दे रहे हैं. They will not want the authorities to inspect their algorithms. जबकि ये एल्गोरिथम्स जो है सभी कुछ डिटरमिन करते हैं कि किसको एक्सेस मिलेगी, लोन्स, जॉब, हाउसिंग, फिर भी ये गवर्नमेंट को नहीं देखने देना चाह रहे हैं. फर्दर प्रोविजन थ्रेटन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाइक राइट टू रिपेयर लॉज विच हेल्प पीपल अपडेट एंड फिक्स देयर ओन डिवाइसेस अफोर्डेबली. तो ये सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट्स विल नॉट बी एबल टू देन intervene and implement all those measures in order to protect consumers. A key tactic of industrial lobbyists has been to frame these issues as matters of foreign policy, claiming that big tech's dominance is essential for national competitiveness. तो जो इंडस्ट्री लॉबिस्ट हैं वो कहते हैं कि देखिए ये सब चीज़ें तो फॉरेन पॉलिसी के अंडर में आती है, क्योंकि बिग टेक की डोमिनेंस जो जरूरी है नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए. जैसे अमेरिका के अमेरिका नाउ ट्रम्प, यू मे हैव हर्ड दैट यूरोप जो है वो यूरोपियन यूनियन काफ़ी सारे कंट्रोल्स लगा देता है गूगल पे और एप्पल पे, फेसबुक पे, सब पे. तो ट्रम्प वहां पे आया था उनकी तरफ से लड़ने के लिए कि नहीं ये कैसे, तुम अगर इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो आई विल इम्पोज टैरिफ्स ऑन यू, राइट. ही थ्रेटन्स दीज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज. तो ये वही हो रहा है कि जो बिग टेक है, सी बिग टेक कंपनीज आर ऑल अमेरिकन कंपनीज, राइट. चाइना की बिग टेक कंपनीज आर नॉट दैट वे ग्लोबल इन दैट टू दैट एक्सटेंट. है टिकटॉक वगैरह है, बट इतना नहीं है. ये जो बिग टेक कंपनीज हो गई, गूगल, एप्पल, फेसबुक, मेटा, ट्विटर, ओपन एआई, ये सब, तो इनकी डोमिनेंस नेशनल कॉम्पिटिटिव्स के लिए जरूरी है. बट conflicting corporate profit with national interest obscure the truth. Global leadership is better served by promoting rules that support both innovation and democratic oversight. Lobbyists also argue that secrecy protections are needed to shield innovation from foreign theft. Yet the national trade rules already protect trade secrets. Blocking governments from inspecting AI or source code only assures that firms in law-abiding countries escape accountability. While digital trade language may appear technical, implications are clear. Proposal will effectively block governments from responding to public demands with greater accountability and regulation of digital trade. तो ये भी एक और बताया उसका नेगेटिव साइड कि उससे फिर जो गवर्नमेंट्स हैं वो पब्लिक डिमांड अगर कर रही है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी या रेगुलेशन, तो वो नहीं कर पाएगी. There is a genuine necessary debate about how best to promote competition and prevent harm, but such decisions should be made transparently through open public discourse, not locked away in trade agreements that serve corporate interests over democratic values. तो एंड में इसने यही कंक्लूड किया है कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंटली होने चाहिए ओपन पब्लिक डिस्कोर्स में. उन्हें कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स में के जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वहां पे जो डिस्कशन हो रहे हैं, तो ओनली फ्यू पीपल आर, वेरी रिस्ट्रिक्टिव नंबर ऑफ पीपल आर अवेयर अबाउट दोज थिंग्स, राइट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक पब्लिक डिस्कोर्स में होना चाहिए. सो बेसिकली दिस passage, if you ask the main idea, it was about how this big tech through these international trade agreements, they are trying to undermine the country's ability to protect consumers, preserve competition, and also they are not allowed to. I mean, they pose a lot of challenges in terms of reviewing algorithms and also inspecting their AI source code or something. राइट. तो इस तरीके से ये लोग अंडरमाइन कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को, एफर्ट्स को. तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस नाउ. तो इस तरह के पैसेज में देखो, अगेन दिस इज नॉट अ वेरी गुड पैसेज टू गिव हियर इफ यू आस्क मी. देयर इज सो मच ऑफ इट crammed into these 3-4 paragraphs.
एंड इट डजंट लुक कोहेरेंट टू मी। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक, पता नहीं आप लोगों को लगा है कि नहीं लगा, कि एक कहीं से एक पैराग्राफ उठा लिया, फिर दूसरा उठा लिया, फिर तीसरा चौथा उठा के जोड़ दिया। देयर इज नो कोहेरेंट एग्री, एक आर्ग्यूमेंट जैसे एमर्ज होता है ना कहीं पे भी, वैसा नहीं दिख रहा है मुझे। ऐसा मुझे लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंसर्न रेज्ड बाय द पैसेज? The excessive political and economic influence of big tech. Big tech and its attempts to undermine democratic oversight. Big tech's use of international trade agreements to escape regulation. Big tech's use of trade agreements to push patent protection. ये तो बहुत आराम से हटा सकते हैं, और इसको भी आराम से हटा सकते हैं। Right? We can eliminate A and D. Agreed? Now come B and C. तो बताइए, मुझे इसमें से C ऑप्शन बेटर लग रहा है, उसने आंसर बी दिया हुआ है। यस सुपर, नो बताइए। सर मेरा एक अंडरलाइंग थॉट यहाँ पे था कि हम्म, अल्टीमेटली मतलब सारा मतलब रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इज दैट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट दिस बिग टेक। हम्म, तो वही मतलब मेरे को लगा था, इसलिए मैंने डेमोक्रेटिक मार्क किया था कि ओके, मतलब वो अगर कर दिया होता तो बहुत सारा ऐसे ही सॉल्व हो जाता, बट वो नहीं कर पा रहे वो लोग, फॉर वट एवर रीजन बिग टेक इन्फ्लुएंस कर दे रहा है, तो दैट्स वाई हम्म, समझ आया था ऐसा। ठीक है। यस अक्षिता। सर आई ऑल्सो हैड अ सिमिलर थॉट प्रोसेस। हम्म, पूरे पैसेज में if हम लोग देखें तो उसने कहीं ना कहीं लिंक डेमोक्रेसी से किया है कि कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हम्म, को फर्क पड़ रहा है इसकी वजह से, एंड हाउ इट इज अंडरमाइंड, सो दैट इज व्हाई मैंने बी चूज किया ओवर सी, ऑल्दो सी गलत तो ऑब्वियसली नहीं है। ओके। यस खुशी। सर मैंने भी बी एंड सी की कंफ्यूजन थी, बट बी में ना मैंने एक तो डेमोक्रेटिक ओवरसाइट, ठीक है, दैट इज करेक्ट कि है, ठीक है। पूरा पैसेजेस अराउंड ट्रेड एग्रीमेंट, अगर आप देखोगे हाउ ट्रेड एग्रीमेंट इज हेल्पिंग द बिग टेक्स टू एस्केप गवर्नमेंट ओवरसाइट, तो मैंने पहले बी मार्क करा, फिर एंड में आके वो दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा था बार बार, तो मैंने एंड में आके उसे सी पे चेंज करा, लाइक सारे सी। टिक करके इवेंट बैक टू सी। रीजन फर्स्ट थिंग, मैं अंडरमाइन नहीं कहूंगी, अगर वो जो भी अटेम्प्ट्स कर रहा है दैट इज नॉट अंडरमाइन, वो वीक नहीं कर रहा डेमोक्रेटिक ओवरसाइट्स को, वो एस्केप कर रहा है या लिमिट कर रहा है, मतलब मैंने इसलिए उसको सी को मार्क करा तो बी को एलिमिनेट कर दिया था फिर। ओके, ओके। यस कुशाग्र। सर लाइक ऑल्दो देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन सी, बट सर जो मैंने मार्क करा था, तो सर लाइक वही एक तो जो पूरे पैसेज का कंसर्न है, मतलब वो जो स्टार्ट हुआ है तो वो डेमोक्रेटिक ओवरसाइट वाले पॉइंट से ही स्टार्ट हुआ है। और फिर सर मुझे ऐसा लगा कि जो ट्रेड वाली बात है वो मतलब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ही एक, अगर मैं बोलूँ एक बिगर पिक्चर के अंदर उसको एज अ लाइक स्मॉलर सर्कल इंट्रोड्यूस कर रहा था, फिर उसके ऊपर उसने बात करी थोड़ी बहुत। और सर फिर लास्ट वाले पैरा में भी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ओवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज लिखा हुआ है, जिसमें उसने ट्रेड वाले डिसीजंस को डिस्क्राइब करा है, तो इसलिए मुझे लगा थोड़ा बी की बेटर होगा। ओके, देखो मेरा जो पर्सनल व्यू है ना, मतलब ठीक है, मे बी यू नो, अगेन आई वुड, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, बट आई फील दैट सी इट्स अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेटिक ओवरसाइट। हाउ इज इट बीइंग डन? जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे कि साइड स्टेप दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, राइट? व्हाट इज दिस डेमोक्रेटिक ओवरसाइट? सी, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट मतलब ये है कि जो आपके जो स्मॉल प्रोटेक्स, जो छोटे मोटे लोग हैं आपके, है ना, स्मॉल कंज्यूमर्स हैं और कंपटीशन है, वो सबको प्रिवेंट होना चाहिए, राइट? वो सब अपने मतलब सभी को सस्टेन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना कि बोथ इनोवेशन एंड डेमोक्रेटिक ओवरसाइट, yet global leadership is better served by promoting rules that support both innovation and democratic oversight. Now, तो इसलिए मुझे ये चीज कंप्लीट नहीं दिख रही यहाँ पे कि कैसे अंडरमाइन कर रहा है ना? अगर सपोज करो कोई बोले कि भाई ये बिग टेक वो किस तरीके से कर रहा है डेमोक्रेटिक ओवरसाइट बाय लेट्स से यूजिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऐसा अगर लिख देता वहां पे तो दिस वुड हैव बीन मच बेटर, राइट? तो क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड, पूरे पैसेज का जो एक क्रक्स है वो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर है। वो ऐसा मतलब एक स्पेसिफिक तरीका बताया ना कि बाय एम्बेडिंग रिस्ट्रिक्टिव रूल्स, डिजिटल रूल्स इनटू इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल दिस थिंग, इट इज नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक कंट्री, मतलब एक कंट्री के लिए नहीं बोल रहा है। तो डेमोक्रेटिक ओवरसाइट ठीक है, मतलब ये भी गलत नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें से ये ज्यादा बेटर लग रहा है।
ओके, नाउ आई हैव माय व्यूज, बट ठीक है, जिन्होंने भी सही मार्क किया और सही आया आपका, देयर इज नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम देयर, ओके, तो डोंट, दैट्स फाइन, ओके, दैट्स फाइन, तो वी विल लीव इट हियर, ओके, बिकॉज आई फाउंड कि इसमें ये इनकम्प्लीट लग रहा है, दैट्स द ओनली थिंग। सर हाँ, सर इसमें अंडरमाइन कर सकते हैं हम, मतलब। अंडरमाइन तो ठीक है, अंडरमाइन इज ओके, अंडरमाइन मीन्स वीकन और चैलेंज, हम्म तो वो ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग देयर, बट हाउ, सी पॉइंट इज हाउ बिग टेक इन इट्स अटेम्प्ट टू अंडरमाइन, इन व्हाट सेंस? सी, बिग टेक जो है वो बहुत तरीके से कर सकता है डेमोक्रेटिक ओवरसाइट को अंडरमाइन। यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से बताया गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में वो चीजें लाके और वो अंडरमाइन करता है, वो चीज नहीं बताई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। According to the passage, big tech overrides public interest in all of these ways except by embedding digital rules to limit regulation and privacy। तो यहाँ पे तो बताया हुआ है ये तो अभी हमने बात की, डिजिटल रूल्स एम्बेड कर दिए उसने, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एम्बेडिंग रिस्ट्रिक्टिव रूल्स, है ना। बाय ब्लॉकिंग एक्सेस टू देयर एल्गोरिथमिक सिस्टम्स, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि एल्गोरिथम दैट वुड प्रिवेंट अथॉरिटीज फ्रॉम इंस्पेक्टिंग सच एल्गोरिथम्स, तो ये भी लिखा हुआ है। बाय इक्वेटिंग नेशनल इंटरेस्ट विद कॉर्पोरेट सक्सेस, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कि मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी बिग टेक्स एसेंशियल फॉर नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी दिया हुआ है। बाय डिनाइंग एक्सेस टू लोन्स, देखो ये डिनाई नहीं कर रहा है एक्सेस टू लोन्स, ये कह रहा है क्योंकि ये एल्गोरिथम जो है वो ये करते हैं, एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो उनका इंस्पेक्शन जरूरी है, तो वो ये नहीं बोल रहा है कि वो एक्सेस डिनाई कर देते हैं तो लोन्स, ये दिस इज अ डिस्टॉर्शन विच इज ओके। सो दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, दिस इज फाइन। यस अक्षिता। सर जो पैसेज में दिया हुआ है कि मतलब उससे ब्लॉकिंग एक्सेस टू एल्गोरिथमिक सिस्टम्स कैसे इन्फर कर सकते हैं? प्रिवेंट कर रहा है वो एल्गोरिथमिक सिस्टम्स को, समझ आ रहा है, बट कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है एक्सेस, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। मतलब इफ आप That big पैसेज tech में is पढ़ो, pushing rules that would prevent authorities from inspecting फ्रॉम such इंस्पेक्टिंग algorithms। सच एल्गोरिथम्स, तो हाँ, ये so when you, प्रिवेंट कर रहा है उनको, बट ब्लॉक थोड़ी हाँ, कर दिया एल्गोरिथम को। नहीं ब्लॉक एल्गोरिथम को कर दिया, मतलब ब्लॉकिंग एक्सेस टू देयर एल्गोरिथमिक सिस्टम्स, मतलब कि सर उनके उनको अंदर नहीं घुसने दे रहा है देखने के लिए कि इसमें है क्या तुम्हारे सिस्टम में। सी, आप बात समझो, वो ये नहीं कह रहा है कि आप एल्गोरिथम, आप अगर सपोज करो कोई ऐप यूज कर रहे हो तो उसका एल्गोरिथम तो आप एक्सेस कर रहे हो ना, वो थोड़ी मना कर रहा है। वो कह रहा है कि उस एल्गोरिथम के अंदर क्या है, कैसे लिखा गया है वो, क्या उसमें बायसेस हैं क्या नहीं है, वो डिटेक्ट करने के लिए अगर आपको एक्सेस चाहिए, मुझे उसको सॉफ्टवेयर उसका देखना है मुझे, वो सॉफ्टवेयर की एक्सेस नहीं दे रहा वो, ये बोल रहा है, ना कि वो ऐप की एक्सेस दे रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, ओके सर, हम्म। हाँ, गॉट इट गॉट। हाँ, इसलिए एक्चुअली करना। चलो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पैराग्राफ बिगिनिंग अ की टैक्टिक, ये भी मेरे ख्याल से इजी था। इसमें ये यहाँ पे ये की टैक्टिक हैज बीन टू फ्रेम द इंस्टीट्यूट्स द मैटर ऑफ नेशनल पॉलिसी essential for national competitiveness। तो to show how lobbyists align business goals with national interests, to show how lobbyists align business goals with national interests, इसको रख लेते हैं, ऐसा कुछ बात हुई। टू एक्सप्लेन व्हाई बिग टेक लीगली रेजिस्ट शेयरिंग, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो रेजिस्ट शेयरिंग वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वो तो ऊपर वाले पैराग्राफ में हो रही है। वो यहाँ पे तो बोल रहा है कि की टैक्टिक हैज बीन टू फ्रेम दिस इशू एज मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, claiming that big tech's dominance is essential for national competitiveness। तो lobbyist align business goals with national interests, critique how big tech frames its interests as national concerns, इसको भी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं ये दोनों, है ना। टू शो हाउ ट्रेड सीक्रेट्स आर एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड इनएडिक्वेटली, ये बिल्कुल गलत है। तो अब ए और सी में कितने लोग कंफ्यूज हुए थे? टू शो, यस हितेश, एंड काफी लोग हुए थे, तो अल्टीमेटली बताइए फिर सी सही आंसर निकला क्यों है, क्या सी सही है? सर उसमें तो एक पैराग्राफ में अभी जहाँ पे आपने पढ़ा वहां पे लिखा था कि नेशनल इंटरेस्ट, तो अल्टीमेटली वही देख के मैंने मार्क किया था, मतलब कौन सा मार्क किया आपने? ए? सी। सी, टू क्रिटिक हाउ बिग टेक फ्रेम्स इट्स इंटरेस्ट एज नेशनल कंसर्न्स, ये देखो
कि claiming that big tech's dominance is essential for national competitiveness. तो बेसिकली जो बिग टेक है वो ये कहता है कि भाई ये जो हमारे लिए जो प्रॉफिट्स हैं या जो भी मतलब कि ये है इंटरेस्ट है हमारे, ये नेशनल कंसर्न्स है। तो अलाइन बिजनेस गोल्स, ये एक डिस्टॉर्शन हो गया, ये उल्टा हो गया विथ नेशनल इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा शो हाउ लॉबिस्ट अलाइन बिजनेस गोल्स विथ नेशनल टू हाउ बिग टेक फर्म्स। तो इसलिए इसमें सी करेक्ट है, ए नहीं है। यस सोनाली। सर इवन आई चोज सी। मुझे कंफ्यूजन नहीं था ए और सी में, बिकॉज वही जो आपने कहा कि उल्टा हो जाता है ए में, तो मुझे काफी ऑब्वियस सा लग रहा था कि वो क्रिटिक ही कर रहा है। हाँ दैट्स व्हाई आई चोज सी। ठीक है, फेयर इनफ, सी वाज करेक्ट। फ्रेम्स इट्स इंटरेस्ट एज नेशनल कंसर्न, मतलब आपने इंटरेस्ट जो अपने हैं उसको नेशनल कंसर्न बता दिया है ना। अलाइन नहीं कर यस रहे हो आप यस। बिजनेस गोल्स, आप कुछ मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप बोल रहे कुछ हो यार एक मुझे। तरीके से डिसीव कर रहे हो कि ये तो नेशनल इंटरेस्ट, हाँ करेक्ट, पर एक तरह से उसका डिसीव कर खुद रहे का प्रॉफिट निकल रहा है उसमें। हो। मतलब आप वो प्रॉफिट को बोल रहे हो भाई ये तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, हाँ, ये तो कि मैं तो प्रॉफिट। चैरिटी वट एवर। बट हाँ, वही वही दैट 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 वाज माय थॉट प्रोसेस। करेक्ट। यस क्षितिज। सर इसमें आई गॉट कंफ्यूज कि नेशनल कंसर्न्स आई थॉट इज अ नेगेटिव टर्म हियर, कि नेशनल इंटरेस्ट लाइक इट इज हेल्पिंग द नेशन एज वेल, नहीं, उनके कंसर्न बिजनेस डज गोल। नॉट मीन नेगेटिव ओनली, कंसर्न मीन्स इंटरेस्ट ऑल्सो। कंसर्न आई टोक इट लाइक कि नहीं नहीं नहीं, लोगों के लिए कंसर्न कंसर्न है, मतलब वरी, नेशनल के लिए कुछ लाइट ऑफ वरी। वरी टाइप्स वाला। नहीं 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 नहीं, देखो कंसर्न का तो बहुत सारी चीज होती है ना। कंसर्न मीन्स व्हाट इज, सो कंसर्न मीन्स व्हाट इज द इशू दैट इंटरेस्ट्स यू। ओके, सो व्हाट इज योर कंसर्न हियर, सो डजंट मीन दैट इट्स योर वरी ओनली कि दैट हाउ आर यू डिस्टॉर्शन कंसर्न्ड क्रिएटेड विद विद दिस दिस पर्टिकुलर नैरेटिव। टॉपिक है ना, या दिस इशू। सो हाउ आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, सो कंसर्न डज नॉट मीन्स ओनली वरी है ना। अ बिग कंसर्न इज दैट द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन हिल, वहां पे जो कंसर्न यूज हुआ है दैट इज इन द सेंस ऑफ अ वरी है ना। सो उसका अलग अलग मतलब है। तो यहाँ पे नेशनल कंसर्न इज बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट। ये जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो विद मोस्ट डायरेक्टली वैलिडेट द ऑथर सेंट्रल कंसर्न। ओके, नाउ ये यहाँ पे कंसर्न जो है ना आप बता रहे हो वो वाला कंसर्न यहाँ पे आ गया, राइट। कि ऑथर की जी जो जी। सबसे बड़ी जो चिंता है एक तरह से कि क्या हो रहा है, उसको कैसे कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सिनेरियो वैलिडेट करेगा। हियर यू कैन से दैट कंसर्न इज बेसिकली द नेगेटिव थिंग वाला थिंग, राइट, व्हाट यू थिंक इज बैड। ओके, तो यस टेक सर। जायंट इज फाइंड फॉर ब्रेकिंग डेटा प्रोटेक्शन लॉज, तो ये तो उल्टा हो गया, ये तो खुश होना चाहिए ऑथर को, तो वैलिडेट नहीं करेगा। विसल ब्लोअर एक्सपोजेस बायस, तो ये भी बेसिकली अच्छी चीज है ना कि एल्गोरिथम में उन्होंने बायस बता दिया, तो वो तो कह रहा है कि यार एल्गोरिथम को देखने नहीं देते हैं वो लोग, तो अगर कोई एक्सपोज कर रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, तो ऑथर विल नॉट बी अनड्यूली अनहैप्पी अबाउट दिस, राइट। गवर्नमेंट पासेस अ लॉ फॉर मोर एआई ट्रांसपेरेंसी, ये भी ऑथर खुश होगा है ना। कंट्री कैनॉट इन्फोर्स प्राइवेसी लॉज ड्यू टू ट्रेड डील, यस, ऑब्वियसली ऑथर के कंसर्न को वैलिडेट करने वाला यही ऑप्शन है। दिस वाज अगेन इजी इजी क्वेश्चन, आई वुड, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इजंट इट। ठीक है, चलिए। Okay, so far so good. We could figure out a couple of questions which were a little dicey and iffy, but let's now see. This was the easy question, one of the easiest one. Again, over the past century, half century, neuroscience has expanded to how brain, just as computers are hardwired, the brain is hardwired. तो ये how brain is organized, तो brain is hardwired with neural connections. तो ये वन पे आ सकता है, ये और कहीं आगे नहीं. These connections, one major aim of current neuroscience research, study how this wiring works. New developments allow researchers to see मोर डिटेल्ड इमेजेस, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है आने का बाद में, तो ये वन पे ही आ सकता है और कहीं नहीं जा सकता, राइट। सो आई वुड से दिस वाज द इजी क्वेश्चन, वी शुड हैव गॉट इट करेक्ट। ओके, नाउ scientific, this may be the only tip of the researchers are increasingly suspected of misusing AI chatbot to produce scientific papers raising concerns within the academic community. यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस साइंस सच एज एआई जनरेटेड फ्रेजेस एक्सीडेंटली लेफ्ट हैव बिगन अपीयरिंग इन जर्नल्स, ये भी इसके बाद आ गया, राइट।
Scientific integrity experts, Elizabeth Bonds, this may be only the tip of the iceberg and many instances are harder to detect. ये तो चलो कुछ लोगों ने वैसा का वैसे ही डाल दिया तो चलो आप कर लिया डिटेक्ट, लेकिन कई इंस्टेंसेस हार्डर टू डिटेक्ट। और फिर वन आ जाएगा, मीनवाइल पब्लिशर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग लैप्सेस बट रिलायबल आइडेंटिफाइंग टूल्स रिमेन लिमिटेड। फोर्थ स्टेटमेंट सेज व्हेन यू लुक्ड एट दिस स्टफ लॉन्ग इनफ यू गेट अ फील फॉर द स्टाइल। ये तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है कि आप पहचान सकते हो कि कौन सा एआई जनरेटेड है ना। तो दिस इज गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विच इज व्हाई दिस द ऑर्डर नाउ। दिस वाज अ लॉजिकल क्वेश्चन अगेन, ओके, नथिंग रॉन्ग इन दिस। ओके, cool. Let's go to the latter half now. Now comes a little bit of a challenge here. Under consumption core, the new viral trend encourages consumers to be little less spend happy, more conscientious. Plenty of attention off platform to Google searches have searched. April Silva, thrift store fan, defines it more minimal approach to shopping. You don't need 5 winter coats when you have one perfectly good one. You don't need every color of Stanley Cup or massive shine halls just for content. Most of the clothing you see at people's halls are just trend pieces. What I choose to spend on money on matters and I try to be smarter about it every day. तो कुछ अंडर कंजम्पशन कोर कुछ आ चुका है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हम मिनिमल अप्रोच रखेंगे शॉपिंग के लिए, 5 विंटर कोट नहीं खरीदेंगे, एक ही खरीदेंगे। Instead of buying, pressing buy now on high products, under consumption core adherents lean into capsule wardrobes using makeup until it's down to pan and shopping second hand. In many ways, under consumption is a spiritual sister of de-influencing. Influencers dissuade followers from buying cult favorite products. Both fall into what might be called as recession core influencing. When money is tight, costs are rising, who can stomach buying a $42 highlight? ना तो ये एक और टर्म डिफाइन कर दिया इन्होंने। एक तो डी इन्फ्लुएंसिंग बताया, दूसरा बता दिया रिसेशन कोर इन्फ्लुएंसिंग। दैट मीन्स कि रिसेशन के टाइम पे आपको ये सब चीजें नहीं करनी, राइट। शेल्बी और सस्टेनेबल लिविंग इन्फ्लुएंसर थिंग्स द ट्रेंड इज 100% रिस्पॉन्स टू आवर करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। I think it's that in a response to the constant exposure to perfectly curated homes and wardrobes. Insidious introduction of TikTok shop is added. Trends like these tend to be cyclical. Cossack remembers the version of underconsumption code once called minimalism. That was admittedly flawed. With trends like this, people sometimes swap one form of consumption for another. It isn't surprised Gen Z is embracing a consume only what you need mindset. They are constantly targeted by budget generation 11 तो यहाँ पे एक और नया टर्म इन्होंने डाल दिया, मिनिमलिज्म, है ना। और उसके बारे में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि दैट वाज एडमिटेडली फ्लॉड। दैट मींस मिनिमलिज्म कोई बहुत अच्छी चीज नहीं था, क्योंकि विद ट्रेंड्स लाइक दिस पीपल समटाइम्स स्वैप वन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फॉर अनदर। तो ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम योर अंडर कंजम्पशन कोर, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है मिनिमलिज्म के बारे में। Gen Z is also keenly aware of environmental issues tied to fast fashion. Pew study shows 76% are worried about climate change. Jennifer runs a TikTok about her chi hua mix. Miri says her boomer parents practice under consumption core before it had a name. बूमर पेरेंट्स कौन होते हैं? जो 1964 से जो जनरेशन बॉर्न हुई थी और 1980 तक, उसको बेबी बूमर्स कहा जाता है। तो बूमर पेरेंट्स जो थे वो अंडर कंजम्पशन कोर प्रैक्टिस करते थे, जब उसका नाम भी नहीं पता था उनको। नाउ इन LA she takes satisfaction in giving things a second life. There is very little need to buy new. She also limits food waste and reuses much. It is not aesthetic, but it serves. She said of Millie's original blanket in a video titled Under Consumption Core Dog Mom Edition. Christina, co-host, appreciate the trend, especially after emotional spending led to debt. No buy years, and she was shopping for a fantasy version of this. तो अब यहाँ पे एक और चीज चीजें बताइए इसमें कि एक तो क्लाइमेट चेंज के कारण वरीड है, दूसरा ये भी बताया कि भाई हमारे पेरेंट्स भी यही सब करते थे, और ये बोला कि चीज़ों को सेकंड लाइफ दो, नई चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से अलग अलग लोगों के बारे में बता दिया उसने। As the trend has taken off, some users have turned it into competition. There's a video of women sharing a sustainable life. People were like, fridge is full, you're not consumption core. तो लोग अपने वीडियो बना रहे हैं, उसमें उनका फ्रिज फुल है, तो वो लोग बोल रहे हैं यार अपने आप को कैसे बोल रहे हो आप अंडर कंजम्पशन कोर, आप तो ओवर कंज्यूम कर रहे हो, आपका फ्रिज तो फुल है।
We all have a version of how to be a better consumer. It's not about getting rid of everything. Instead, she hopes the trend helps people gravitate towards purchases that are emotionally durable and meant to last. It's always better to step back and ask yourself what part of this is appealing. अगेन ये पैसेज जो था अच्छा था, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है, इट इज नॉट कोहेरेंट. ओके, देयर आर वेरियस. अभी ये आई हैव नॉट सीन विच आर्टिकल दे हैव ब्रॉट दिस फ्रॉम. मैं एक बार देखूंगा उसको, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा जोड़ जाड़ के बना दिया गया है. इधर के चीज और चिपका के, उधर की चीज और चिपका के एक आइडिया लिया गया, रिसेशन को इन्फ्लुएंसिंग, उसको कोई डेवलप नहीं किया. मिनिमलिज्म लिया गया, उसके ऊपर थोड़ा सा लिख दिया गया, फिर कुछ एक पैराग्राफ लिख दिया गया. तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ समझने में दिक्कत नहीं है, बट इट डजंट रियली गिव अ गुड फीलिंग. यस सुपर. सर मेरे को थोड़ा सा लाइक पूछना था ओवरऑल पैसेज में कि इतने ज्यादा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में था ना, तो मेरे को वही मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हर बार टोन चेंज हो रहा है कि मतलब सेम रह रहा है कि लाइक नहीं नहीं, मिनिमलिस्टिक। इन्वर्टेड कॉमर्स में नो नो नो. इन्वर्टेड कॉमर्स में तो कहाँ पे, जैसे आप ये इसकी बात कर रहे हो आप, ये और ये, देखो ये तो हाँ एक सर मतलब स्पेसिफिक. हाईलाइट। नहीं नहीं, इसका मतलब तो ये है ना कि एक स्पेसिफिक कोई चीज उसने बताने की कोशिश की गई है. मतलब कि दीज आर नॉट नॉर्मल, द वे द लैंग्वेज इज यूज इज जस्ट बेसिकली गिवन फॉर इफेक्ट. और सर ये जो जैसे है, ये मिनिमलिज्म। जो, नहीं देखो, ये बेसिकली जैसे शी सेड, तो ये किसी को कोट कर रहे हैं. ये जो, ये किसी को कोट कर रहे हैं, राइट. ये मोस्ट ऑफ द क्लोजिंग शी सेड. तो ये शी कौन है यहाँ पे? तो ये अप्रैल सिल्वा है ना. अप्रैल सिल्वा टिकटॉक यूजर है और थ्रिफ्ट स्टोर फैन है, और पता नहीं अपने कपड़े कहाँ सिलवाती है. तो सॉरी, तो वो बेसिकली बोल रही है ना. उसी तरह से अब जैसे यहाँ पे रिसेशन कोर इन्फ्लुएंसिंग, ये एक टर्म यूज कर दिया उसने, तो उसको उसमें डाल दिया. फिर कोसक के ने कुछ बोल दिया, तो कोसक के ये आ गए ना. तो ये बेसिकली लोगों की स्टेटमेंट्स हैं जो कि जेनिफर बर्टलिंग के आ गए यहाँ पे, इसलिए इसमें बहुत सारे क्रिस्टीना का आ गया. ओके, सो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं. According to the passage, under consumption core reflects consumer behavior driven by all of the following except. तो इसको देखते हैं, इसमें से क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है. A rejection of social media as a platform that shapes or influences buying choices. देखो, सोशल मीडिया को रिजेक्शन तो नहीं किया है किसी ने भी, जबकि वो तो टिकटॉक टिकटॉक ही कर रहे हैं जब से. वायरल ट्रेंड ऑन टिकटॉक और ये सब टिकटॉक को ही देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया टिकटॉक भी है. तो बेसिकली इट्स नॉट दैट दे आर रिजेक्टिंग दिस. सो इसको तो एक्सेप्ट में रख सकते. डिसइल्यूजनमेंट विद कंज्यूमर लाइफस्टाइल प्रमोटेड बाय इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया, ये तो है. ये जो डी इन्फ्लुएंसिंग हो रहा है वो अब अंडर कंजम्पशन कोर. इन्फ्लुएंसर्स डिसुएड फॉलोअर्स फ्रॉम बाइंग कल्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स, है ना. तो डिसइल्यूजनमेंट विद कंज्यूमर लाइफस्टाइल प्रमोटेड बाय इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया, ये रख सकते हैं हम, कि ये तो है अंडर कंजम्पशन. एन इमोशनल रिएक्शन टू पास्ट ओवर स्पेंडिंग एंड इम्पल्सिव शॉपिंग हैबिट्स. तो ये यहाँ पे लिखा है कि मासिव शाइन हॉल्स जस्ट फॉर कंटेंट, मोस्ट ऑफ द क्लोथिंग यू सी आर जस्ट पीसेस. तो ये भी कहीं ना कहीं से इन्फर कर सकते हो आप. एंड में भी दिया हुआ है वहां पे शायद कुछ कि फीलिंग इमोशनल, और नहीं दिया हुआ है इमोशनल, आई डोंट नो. और लास्ट सेकंड पैराग्राफ के एंड में है कहाँ पे? कि लास्ट सेकंड पैराग्राफ के एंड में है इमोशनल कि स्पेंडिंग आफ्टर लेड हर टू डेट. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट. तो ये दिया हुआ है ना, इमोशनल स्पेंडिंग, इमोशनल रिएक्शन टू पास्ट ओवर स्पेंडिंग एंड इम्पल्सिव शॉपिंग हैबिट्स. तो इसको रख सकते हैं कि बाहर है. कनेक्शन टू ओल्डर जनरेशन हु शॉप्ड सिमिलरली बट विदाउट लेबलिंग इट. तो ये भी इसमें नोट बोला गया है यहाँ पे कि हमारे पेरेंट्स जो है वो करा करते थे ऐसा काम, है ना. ये यहाँ पे उसने बोल दिया है कि our boomer parents practiced under consumption core before it had a name. अब सी देखो, ये मुझे इसमें प्रॉब्लम है इस ऑप्शन में कि नाउ एक मिनट, आई एम जस्ट कमिंग टू यू. कंज्यूमर बिहेवियर ड्रिवन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग. नाउ इफ सपोज दिस जेनिफर सेज that her boomer parents practiced under consumption, can we infer that she was inspired by it? ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. यस अक्षिता, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? सर ये तो मुझे ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था, मेरे को बी में भी डाउट है. डिसइल्यूजनमेंट विद कंज्यूमर लाइफस्टाइल प्रमोटेड बाय इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया. डिसइल्यूजनमेंट मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट
कह सकते हैं, बट पैसेज में तो अंडर कंजम्पशन कोर को वो चीज सपोर्ट कर रहे हैं ना कि Yeah. वो मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए नेगेटिव वे में थोड़ी यूज हुआ है। दे आर like they are not influencing people to do that, so that's in a positive sense ना, तो बी कैसे आएगा? like how हम्म you are getting my point? मतलब हम्म No, spiritual I'm looking. sister of de influencing, now that is in a positive sense, right? तो I agree. disappointment कैसे हुआ? नहीं नहीं, वो यहाँ से नहीं आया, वो यहाँ से नहीं आया है। वो आया है यहाँ से ना, रिस्पॉन्स टू द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू परफेक्टली क्यूरेटेड होम्स एंड वार्डरोब्स, द इंसीडियस इंट्रोडक्शन ऑफ टिकटॉक शॉप हैज एडेड टू द फ्रस्ट्रेशन। तो अब इसमें अब ये बोलो कि ये कोई इन्फ्लुएंसर है या क्या है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच लिया। अगेन यू आर राइट बाय सेइंग दैट, लेकिन डिसइल्यूजनमेंट तो है ना उसका, कि दिस इज 100% रिस्पॉन्स and a response to the constant exposure to perfectly curated homes and wardrobes. The insidious introduction of this TikTok shop has added to the frustration. तो मतलब disillusionment with consumer lifestyle promoted by But influencers, influencers नहीं बताया उन्होंने, सही बोल रहे हो आप, लेकिन हाँ, सोशल और मीडिया ये बताया जो है। ये यूज्ड है ना, इसका एग्जांपल, शी इज आल्सो सपोर्टिंग दैट अंडर कंजम्पशन कोर, ये उसको अपोज नहीं कर रही है, तो बी इज नॉट नहीं 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 राइट। नहीं नहीं नहीं, बी 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 आप इस पर क्वेश्चन तो समझो आप, कि अंडर कंजम्पशन कैसे आया, ड्रिवन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ट्रिगर अंडर कंजम्पशन कोर। तो डिसइल्यूजनमेंट तो ठीक है ना, आपको किसी चीज से डिसइल्यूजनमेंट हो गया तभी तो आप अंडर कंजम्पशन करने लगे, आपको चिढ़ हो गई, राइट। डिसइल्यूजनमेंट इज यू बिकेम टोटली काइंड ऑफ, यू गॉट अ नेगेटिव फीलिंग अबाउट कंज्यूमिंग, एंड दैट्स व्हाई यू बिकेम अ डिस अंडर कंजम्पशन कोर। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, वहां पे सोशल मीडिया तक तो ठीक है। तो सी मुझे प्रॉब्लम इसमें भी है, आपको इसमें क्यों नहीं है प्रॉब्लम? कनेक्शन टू ओल्डर जनरेशन हु शॉप्ड सिमिलरली बट विदाउट लेबलिंग इट। हाँ सर, इसमें भी थी, आई हैड अ प्रॉब्लम, मुझे लग रहा था या तो बी होगा या डी होगा, बट आंसर दोनों ही नहीं था, तो फिर मेरे हाँ को समझ ही नहीं आया। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखो बूमर पेरेंट्स, अब इसमें इसमें नाउ नाउ अगेन सी व्हाई आई हैव अ प्रॉब्लम हियर, दिस अज्यूम्स दैट यू नो हु बूमर्स आर, दैट मीन्स पीपल हु हैव नॉट हर्ड ऑफ द टर्म बूमर। सी जैसे ना बूमर्स होता है, जैसे हम अगर मैं बता दूं आपको कि बूमर्स, फिर जेन वाई, फिर नहीं जेन एक्स, फिर जेन वाई, फिर मिलेनियल्स, नहीं जेन जी और मिलेनियल्स, ऐसे अलग अलग, और अब तो बीटा भी आ गए हैं, है ना। तो ये जो जेन एक्स बूमर्स थे, ये 1940 सॉरी 64 से लेके 80 तक के थे। फिर जेन एक्स आ गए, फिर जेन वाई आ गए, ऐसे फिर मिलेनियल्स आ गए। तो ऐसे अलग अलग, मैं भी भूल गया एग्जैक्टली वो कब से कब तक थे, बट इफ सपोज somebody has not heard of boomers, तो वो ये चीज नहीं पकड़ पाएगा, मतलब वो सोचेगा कि यार ये कहाँ दिया हुआ है कनेक्शन टू ओल्डर जनरेशन। तो ये एक सेंटेंस में सिर्फ उन्होंने दे दिया, और उसने कहा कि हर पेरेंट्स प्रैक्टिस अंडर कंजम्पशन कोर, बट कैन इट से दैट दिस वाज अ फैक्टर दैट शी वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड और ड्रिवन टू इट? मतलब मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है कि अगर चलो आपको पता भी है कि बूमर पेरेंट्स कौन होते हैं, बट हैज ही सेड दैट शी वाज इंस्पायर्ड बाय देम? दिस इज जस्ट अ दिस इज जस्ट अ मेंशन, कोइंसिडेंस डज नॉट मीन कॉजेशन, है ना। इन्होंने वही चीज वायलेट कर दी यहाँ पे, इन्होंने वही चीज वायलेट कर दी। तो ये तो नहीं दिया हुआ, चलो रिएक्शन ऑफ सोशल मीडिया, आई एग्री, बट ये भी मुझे तो लगता है नहीं दिया हुआ है। और जैसे आपने कहा कि भाई इन्फ्लुएंसर भी नहीं दिया हुआ इसमें, तो ये अगेन क्वेश्चन इज द मर्की क्वेश्चन। ओके, मतलब आई हैव अ चैलेंज दिस। ठीक है, ए करेक्ट आंसर मार्क कर दिया, चलता सर है, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। सर अगर मतलब एक चीज पे देखे, देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे इन्फ्लुएंसर नहीं था क्या उसमें, क्या और क्या? एक बी में इन्फ्लुएंसर नहीं था, और हम्म, सी में इट वाज की हम्म, बहुत हम्म, जेनरिक कर दिया हम्म, पर्टिकुलर एग्जांपल। हम्म। बट ए वाला तो बिल्कुल अपोजिट ही हो गया ना। मतलब दिया ही नहीं है? हाँ, ये थोड़ी दिया है कि वो नहीं, अरे आपकी हाँ बात क्या। ठीक है, लेकिन ये भी कहाँ, ये भी एक उसने मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब क्या, कैन बी अज्यूम दैट दिस वाज अ फैक्टर दैट वाज ड्राइविंग दिस अंडर कंजम्पशन कोर? मुझे तो स्ट्रेच लगती है वो। वो स्ट्रेच है, बी भी है, डी भी है, ठीक है बट देखो ए ये, इज समथिंग जो प्रॉपरली आप नहीं कहीं से बट भी ये तो कर थोड़ा थोड़ा इन्फर कर ही सकते नहीं हो, बी ऐसा नहीं है, शायद। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ये तो कर सकते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन अगर दो तीन लगे लोगों को तो क्या करेगा बेचारा? और वो जस्टिफाइड है उसमें, अब उसमें ये थोड़ी बोल सकते कि राइट। विच आर द फॉलोइंग इन मोस्ट अंडरमाइंस, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन ये, तो इसलिए दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन अगेन।
ठीक है, ये आंसर ठीक है, एग्रीड है। जिन्होंने मार्क किया ले लिया, वेरी गुड। आई मीन आई एम नॉट, मैंने भी ए ही अल्टीमेटली फिर मार्क कर दिया था, क्योंकि कुछ और नहीं। ठीक है, बूमर उमर ना मेंशन है तो मैंने कर दिया उसको। यस अनुज। सर एक बार पैसेज में जाएंगे। यस। सर थर्ड पैरा लास्ट लाइन के अंदर जो लिखा है, बट ईच जनरेशन रियलाइज दे डोंट नीड इट एट ऑल, इसका कुछ हम कंक्लूसिवली निकाल सकते हैं कि ए, ऑप्शन ए से रिलेशन, ओल्डर ऑप्शन ए, जनरेशन। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन ए से इसका कोई लिंक नहीं ले नहीं सकते नहीं, हैं इससे ये किसी ऑप्शन तो क्या लेना देना है? वो तो रिजेक्शन ऑफ सोशल मीडिया है यार, ये ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है इससे। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद ए। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। According to the passage, how does under consumption core? Now I have a challenge with this question also. है ना, अंडर कंजम्पशन कोर डिफर फ्रॉम मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म के बारे में आपने क्या बताया यहाँ पे, है ना? आपने सिर्फ दो बातें बता दी कि रिमेंबर द वर्जन ऑफ अंडर कंजम्पशन कोर वंस कॉल्ड मिनिमलिज्म that was admittedly flawed. With trends like this, people sometimes swap one form of consumption for another. तो इससे तो मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि मिनिमलिज्म जो था उसमें आप सोचते हो कि मिनिमम चीजें होनी चाहिए, लेकिन एक फॉर्म ऑफ कंजम्पशन से आप को आप स्वैप कर लेते हो दूसरे फॉर्म से, और अंडर कंजम्पशन में ऐसा नहीं करते हो। बस ऐसा ही यही चीज अब इन्फर कर सकते हो। तो इसमें अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसने ऑप्शन इट एम्फसाइजेस फंक्शनैलिटी एंड इमोशनल वैल्यू ओवर मिनिमलिज्म क्यूरेटेड एस्थेटिक्स। ये कहां से आ गया है? इसको ऑप्शन को जस्टिफाई किया गया है? कोई समझाएगा मुझे? यस कुशाल। सर मुझे तो ये जो ऑप्शन है ए, ये तो एकदम गलत लग रहा था। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा तो कहीं पे लिखा ही नहीं। मिनिमलिज्म क्यूरेटेड एस्थेटिक्स, वेयर इज इट रिटन हियर इन एनी, इन कैन एनीवन शो मी कि मिनिमलिज्म में क्यूरेटेड एस्थेटिक्स होता है? इसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि दैट वाज एडमिटेडली फ्लॉड। विद ट्रेंड्स लाइक दिस पीपल समटाइम्स स्वैप वन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फॉर अनदर। वेयर इज क्यूरेटेड एस्थेटिक्स मेंशन्ड हियर? प्लीज टेल मी। Okay, let me see, two more hands are raised. Akshita, yes. सर कैन वी गो टू क्वेश्चन एक बार? Question? कैन यू गो? हाँ सर, ये तो खैर गलत ही है, उन्होंने जो दिया है वो भी। और सर सी क्यों गलत है, मुझे इसका जानना है कि मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल चॉइसेस जो उसने मिनिमलिज्म के बारे में लिखा है, उससे तो हम एक ही चीज इन्फर कर सकते हैं ना कि मिनिमलिज्म में लोग एक से दूसरी चीजों पे शिफ्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, बट दे आर नॉट ओवरऑल रिड्यूसिंग द नहीं, कंजम्पशन। मैंने भी सी ही मार्क किया है। वही, I क्योंकि also found C only correct here. मतलब within whatever is given here, I also found C only to be the more, I mean, most justifiable answer. Not A का तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा honestly. Yes, Reet. सर इसमें मैंने भी सी ही मार्क किया था सर। ए मुझे भी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लगा, और डी में थोड़ा सा इंक्लाइन हो रही थी, लेकिन मैंने लास्ट की तरफ देखा कि सेकेंड हैंड यूजेज करके और बताया है, बट इट वाज ओनली मेंशन कि मतलब हैंड्स चेंज हो रहे हैं, रिपर्पस का ही कुछ थोड़ा बहुत ये बोला था रिजेक्ट अगर। रिजेक्ट कहाँ है कि इट रिजेक्ट्स मिनिमलिज्म फोकस, तो इसलिए भी आप हटा सकते हो इसको तो। हाँ यस सर। ऑन तो मेरे को भी डीक्लटरिंग इन फेवर ऑफ रीपर्पसिंग एंड कर सकते हो वैसे। सी, ये भी रख सकते हैं आंसर, ये भी रख सकते हैं वैसे, आपकी बात ठीक है, ये डी भी रख सकते हैं। इट रिजेक्ट्स, रिजेक्ट्स मतलब ठीक है, इट डजंट फेवर डीक्लटरिंग इन फेवर ऑफ, तो बट द पॉइंट इज दैट सी इज, आई मीन इन लुकिंग एट द होल पैराग्राफ पैसेज, तो सी ही जस्टिफाइबल लग रहा है हाँ ना? सर, मैंने भी वही मार्क किया था, बट मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि यहाँ पे नहीं, ये पूरा, मतलब। आई मीन दिस अगेन क्वेश्चन इज अ होपलेस क्वेश्चन इफ यू आस्क मी। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है ही है, तो मैं फिर भी इसमें से मुझे सी, मैंने मार्क किया था सी ही इसमें पहले, सबसे पहले। यस कुशागर। सर इसमें जो ऑप्शन बी है, सर उसमें जो पैसेज में लिखा हुआ है कि मिनिमलिज्म जो है उससे फिर वो एक साइक्लिक नेचर में चले जाता है, कि मतलब अगर ये एक प्रोडक्ट हम कम ले रहे हैं तो उसकी जगह फिर कोई दूसरा परचेज करने लग जाएंगे। तो सर मैंने इसमें बी, मतलब जब बाद में लाइक पेपर के टाइम पे तो मैंने इसको नहीं करा था सॉल्व आरसी, तो बाद में मेरे को बी लगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अनलाइक मिनिमलिज्म फ्लेक्सिबिलिटी, तो मतलब अगर मिनिमलिज्म में अगर वो एक भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है यू से। आप ये कह रहे हो कि भाई इसमें मिनिमलिज्म में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि चलो एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, है ना? यस सर, यस और सर, इसमें बोलता है कि लिमिट ही कर दिया उसको। ठीक है, यस सर। तो मतलब उस ठीक है। ऑप्शन में मुझे ये पूछना था, कोई But डिस्टॉर्शन नहीं है ना एज सच? नहीं, मतलब सी, ऐसा स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ है कि स्ट्रिक्टर लिमिट्स लिमिट्स हो, लेकिन ठीक है, चलो
I think Okay, sir. let's move on because this was an absurd. ए तो मतलब जस्टिफाइड ही, देखो हमने तीनों डिस्कस कर लिए, ये तीनों हो सकते हैं, है ना. रादर ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अंडर कंजम्पशन कोर डिफर फ्रॉम मिनिमलिज्म इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट. अगर ऐसा क्वेश्चन बना जाता है ये, तो शायद एक सही हो जाता. इज इट? क्यूरेटेड एस्थेटिक्स कहाँ से आ गया है? आई मीन आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये मतलब. यस अक्षिता. तो ऑल्सो एक चीज, ये रीपर्पसिंग और सेकेंड हैंड यूजेज, ये तो अंडर कंजम्पशन कोर के फीचर्स हुए ना, कि वो प्रमोट करते हैं कि हम्म. इंस्टेड ऑफ मिनिमलिज्म. नहीं तो ठीक है ना, अंडर कंजम्पशन कोर के फीचर्स है ना ये. मिनिमलिज्म, फोकस ऑन डी क्लटरिंग, कुछ नहीं, छोड़ दो. आई थिंक लेट्स नॉट सी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन ही गलत है. ये क्वेश्चन ही नहीं बनना चाहिए जब आपने सिर्फ एक ही लाइन उसके बारे में बताई है तो, है ना. इसमें सिर्फ आप अगर सही आंसर देना होता तो आप ऐसे देते कि इन इन अंडर कंजम्पशन कोर यू डोंट स्वैप वन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फॉर अनदर, वेयर एज इन हियर यू डू. दैट्स इट. दैट्स द होल थिंग दैट यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस, है ना. तो छोड़ दो इसको, हटा के इसको, बेकार क्वेश्चन है. अब चलते हैं 15 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल नाउ इज द, इसमें भी आई डोंट एग्री. रिसेशन कोर इन्फ्लुएंसिंग क्या होती है देखते हैं यहाँ पे. रिसेशन कोर इन्फ्लुएंसिंग ये है कि इन्फ्लुएंसर्स डिसुएड फॉलोअर्स फ्रॉम बाइंग कल्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स, है ना. बोथ फॉल इनटू. और दूसरा क्या है, यूजिंग मेकअप अंटिल डाउन टू पैन शॉपिंग सेकेंड हैंड इज द स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ डी इन्फ्लुएंस. हाइप प्रोडक्ट की बजाय वो बोल रहे हैं कि कैप्सूल वार्डरोब है. तो आंसर बता दिया इसमें बी. फिल्म स्टार स्टार्ट्स द बिजनेस ऑफ यूनिकली रिफर्बिश्ड होम गुड्स हाईलाइटिंग ईच आइटम स्टोरी. तो ये कैसे होगा? शॉपिंग सेकेंड हैंड है, रिफर्बिश्ड हो सकता है तो व्हाई नॉट, बट इसमें सी क्यों नहीं होगा? लाइफस्टाइल वीलॉगर पोस्ट वीकली बजट हॉल शोइंग अफोर्डेबल फैशन अमिड राइजिंग प्राइजेस. यस सोनाली. सर वो आंसर बी है, हाँ. बिकॉज वो थ्रिफ्टिंग को और रीपर्पसिंग को प्रमोट कर रहे हैं. और सी इसलिए गलत है क्योंकि बजट हॉल्स मींस कि वो कंजम्पशन को प्रमोट कर रहे हैं कि आप और खरीदो. इंस्टेड वो कह रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी है उसको आप री इन्वेंट करके या रीपर्पस करके पहनो. इसलिए सी गलत है, बी आंसर है. हम्म. या अच्छा, ऑथर्स पोर्ट्रेयल ऑफ रिसेशन कोर इन्फ्लुएंसिंग, है ना. तो हाँ, वो रिसेशन, सही है कि वो कह नहीं रहा है नहीं कि बजट कम है. नो नो नो, बट एक मिनट. So my let me just put across my point. I'm not dissenting from your perspective, but let me just give you my view here. Instead of pressing buy now on high products, under consumption core adherents lean into capsule wardrobes, using makeup until it's down to pan, shopping second hand. In many ways, under consumption is a spiritual system where influencers dissuade followers from buying cult fabric. Both fall into what might be called recession core influencing. Where money and cost are. तो अब देखो यहाँ पे दो लोग हैं, है ना. एक तो वो जो पर्सन सेल कर रहा है और एक जो पर्सन बाय कर रहा है. तो रिसेशन कोर इन्फ्लुएंसिंग जो है, आप किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो? आप फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव, द बायर विल वांट टू बाय सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स एंड चीप प्रोडक्ट्स. वो बोल रहा है ना, सेकेंड हैंड, थ्रिफ्टी या रिफर्बिश्ड और चीप, राइट. तो फिल्म स्टार ने अगर यूनिक रिफर्बिश्ड होम गुड्स दे दिए हाईलाइटिंग ईच आइटम स्टोरी, डज इट मेंशन कि ये चीजें एक्सपेंसिव? सी, हाउ डू वी नो दैट दिस इज नॉट एक्सपेंसिव? फिल्म स्टार्स ने स्टार्ट किया है, तो दैट itself tells me that he is going to price it, skyrocket. Maybe it is refurbished, that's okay. Maybe it is refurbished, fine. But if it is being marketed by a film star, then can we say that it's going to be a cheap, thrifty kind of a thing? ये एक point है मेरा, है ना. I'm just giving my different points. Whereas lifestyle vlogger post weekly budget hauls. So budget hauls बोले कि भाई बजट में ले लीजिए आप चीजें, हॉल है ठीक है, आपकी इच्छा है, आप दो ले लो, एक ले लो, शोइंग अफोर्डेबल फैशन अमंग राइडिंग प्राइस राइजिंग प्राइसेस. तो ये जो बायर है ये चीप चीजें खरीद लेता है. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई फाउंड सी टू बी बेटर देन बी. नाउ लेट मी हियर फ्रॉम यू. यस, डिफरेंट व्यूज. खुशी. सर, अगर आप वहाँ पे एक एग्जाम्पल देखोगे, उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई थिंक 42, मतलब अगर आप पैसेज पे जाओगे, इसमें ये रहा, व्हाट व्हेन मनी इज टाइट, कॉस्ट आर राइजिंग,
हु कैन स्टमक बाइंग अ $42 हाइलाइटर। बेसिकली वही बजट वाला चीज है कि जितना योर पॉकेट इज लॉन्ग यू विल बाय दैट थिंग ओनली। अब आप एक बारी ऑप्शंस पे जाना। आई एलिमिनेटेड ए, डिजाइनर पीसेस ऑब्वियसली बिल्कुल, एक्सपेंसिव। ये तो चलो मतलब बिल्कुल ही हटा दो, है ना? बी, यूनिक रिफर्बिश्ड आइटम। यूनिक इज लाइक इट सेल्फ सेइंग एक्सपेंसिव, कि या अगर कोई आइटम यूनिक है तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगी। मतलब द कॉनोटेशन इज दैट इट विल बी एक्सपेंसिव, राइट। फिल्म राइट? स्टार वाले पॉइंट से मैंने नहीं सोचा था, बीइंग ऑनेस्ट, मैंने यूनिक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फिल्म सोचा था। स्टार है, अनुष्का कोहली कुछ कर रही है, या कोई दीपिका पादुकोण कुछ चीज लेके आ रही है, तो मतलब आप मेरा मेन फोकस यूनिक पे था कि जैसे नहीं, आजकल दोनों की ही है। आइटम्स। राइट। हाँ, मतलब देखो, इसमें चलो समझो कि रिफर्बिश्ड आपको अगर एक पॉइंट है कि दिस इज अ हम्म। 1 पॉइंट इन फेवर ऑफ रिसेशन कोर, तो यहाँ 2 पॉइंट हो गए इन फेवर ऑफ ये एक्सपेंसिव होने वाला है। फिल्म स्टार ने एक तो स्टार्ट किया, एक यूनिक है, हम्म। तो वेयर इज द दिस थिंग, है ना? चलो, लेट मी हियर फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। कई लोगों ने हाथ उठा के खड़े किए थे यहाँ पे। यस, रीत। सर इसमें मुझे भी ऑप्शन सी ही सही लगा था, क्योंकि वो $42 वाला स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ आ रहा था कि वो यही इम्प्लाई करना चाह रहा है कि जिस चीज में कम लगे, और मतलब अगर हम लोग के पास है ही नहीं तो हम लोग कैसे खर्च कर दे। तो वो राइट, आई थिंक सिर्फ ऑप्शन सी में ही जस्टिफाइड था, तो इसलिए मैंने भी सी ही मार्क किया था। करेक्ट, एग्जैक्टली, दैट इज वॉट माई पॉइंट ऑल्सो। यस, कुशाग्र। सर ऑप्शन सी ही लग रहा था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है राइजिंग कॉस्ट, तो उसमें अमिड राइजिंग प्राइसेस, तो मतलब वो एकदम स्पॉट ऑन बैठ रहा है। और सर जो ऑप्शन बी है उसमें लिखा हुआ है हाईलाइटिंग ईच आइटम स्टोरी, तो सर उसमें तो वो स्टोरी में फिर पर्सनल और इमोशनल एंगल, तो वो तो एकदम डाइवर्ट नहीं हो रहा रिसेशन कोर इन्फ्लुएंसिंग से। वही तो मुझे लग रहा है, वही लग रहा है, तो मतलब वो वही तो लग रहा एकदम डेविएटिंग ऑप्शन लगा मुझे, तो है। समझ ही नहीं आया आंसर कैसे हो गया। आई ऑल्सो थिंक सो। अक्षिता। सर आई हैव अ डाउट। मेरे को एक चीज समझनी थी कि डी ऑप्शन में भी ट्रेंडी क्लियरेंस सेल फाइंस लिखा है, तो वो चीज तो सही है कि कल्ट फेवरेट चीजों को सपोर्ट करा है, बट ये भी तो क्लियरेंस सेल से कुछ बता रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ नॉट अ बैड रॉन्ग थिंग, राइट? तो ऑप्शन। मतलब क्वेश्चन ऐसा बनना था अगर है तो कि कौन सा नहीं होगा, तो बी सी डी वुड बी स्टिल फाइन, ए बिल्कुल नहीं है। बट क्योंकि इसमें बी सी डी और तीनों में एक एक पॉइंट ऐसा है जिससे अपन कह सकते हैं कि करेक्ट, ये इसका वो है। एग्जैक्टली, आई फुल्ली एग्री विथ यू कि ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि इसमें भी तीन को आप किसी न किसी एंगल से कह सकते हो, है ना? और टू तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो, रिफर्बिश्ड इज ओके। आई मीन, सोनाली वाज राइट इन सेइंग दैट रिफर्बिश्ड और सेकेंड हैंड और थ्रिफ्टी जो चीजें हैं वो मैच कर रही हैं, एग्रीड। बट इसमें हमें फिल्म स्टार को भी देखना है और यूनिक चीज को भी देखना है कि कोई चीज अगर यूनिक है तो पीपल कमांड वैल्यू ना, नॉट अ मास। सी, मास प्रोडक्ट चीजों की हर समय वैल्यू कम ही होती है, मेरी कॉस्ट कम ही होगी। यूनिक है तो कितने पैसे चार्ज करें हमें क्या पता, भले रिफर्बिश्ड हो। देखो, आज फिल्म स्टार्स हैं या स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, है ना? कोई भी एक टेनिस मैच देखते हो आप, उसमें जोकोविच अपना जो आर्म बैंड है या हेड बैंड कोई भी है वो उठा के फेंक देता है जनता में, और जनता उसको पागलों के जैसे ले जाती है घर अपने, और उसको अगर उसको ऑक्शन करेंगे तो उनको जबरदस्त प्राइस मिलेंगे, राइट? तो भले ही वो रिफर्बिश्ड हो। तो इसलिए रिफर्बिश्ड इटसेल्फ डज नॉट टेल मी कि इट्स गोइंग टू बी चीप। यस, सार्थक। तो आई ऑल्सो मार्क 3। एंड उसमें जैसे कुशाग्र ने बोला कि उसमें एक तो हाईलाइटिंग ईच आइटम स्टोरी था, प्लस यूनिक वाली चीज। और सर थर्ड थिंग मेरे दिमाग में ये आई थी कि एट वन साइड वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेशन, और दूसरी साइड वहाँ फिल्म स्टार एक बिजनेस ही शुरू कर रहा है, तो हम्म। वो भी एक तरह से मतलब कॉन्ट्रडिक्टिंग था। ओके, फेयर इनफ। यस। तो मैंने ये ये सोच सोनाली, के भी नहीं नोट ठीक किया है, था। आपने सही सोचा था, लेकिन अब वो हाँ, मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते। बट यस, योर पॉइंट्स आर वैलिड। यस, सोनाली। So just putting it the last thing that कि जो फिल्म स्टार है वो इट्स नॉट अबाउट कि वो स्टेटस है उसके कपड़ों का कि वो महंगे प्राइस होंगे। अब फिल्म स्टार है रिप्रेजेंट्स इन्फ्लुएंसर, कि वो इन्फ्लुएंसर है, कि वो इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए उन्होंने फिल्म स्टार यूज इन्फ्लुएंसर नहीं है वो, ही स्टार्ट्स अ बिजनेस, खुद का बिजनेस है उसका। इन्फ्लुएंसर तो वो होते हैं जो एड, मतलब बीच में जाके प्रमोट करते हैं किसी चीज को। सी, ही मे बी हिज ओन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, बट ही इज यस यस हिज ओन यस। बिजनेस। अब हाँ मतलब यस सर, बट आई थिंक अच्छा, आपके लाइक दिमाग आई में एम कोई वेरी ऐसा फिल्म कन्विंस्ड। स्टार नहीं? अच्छा अच्छा, आपके दिमाग में, फ्रॉम योर जनरल दिस थिंग, टेल मी, डू यू कैन यू रिकलेक्ट एनी फिल्म स्टार हु लॉन्च समथिंग व्हिच इज द बजट रेंज? डी सर डेफिनेटली अमेरिकन बाय गोरिल्ला। अमेरिकन हाँ? पता है बट इंडियन तो नहीं पता। नहीं, कौन अमेरिकन कौन सा है, चलो बताओ। अच्छा, सर एक है मिया मेपल्स, वो एक्चुअली अंडर कंजम्पशन कोर को प्रमोट भी करती है, अरे तो
कौन, मिया खलीफा? तो सॉरी, मिया? या मेपल्स, अच्छा, मेपल्स, ओके। या तो नो, लाइक आई थिंक देन दैट वुड बी वेरी स्पेसिफिक, आई वाज नॉट अवेयर। बट अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मुझे तो डी डेकोर, शाहरुख खान की बीवी गौरी खान, वो प्रीमियम, मोस्ट प्रीमियम रेंज ऑफ होम तो फर्निशिंग। प्रीमियम है। यस यस, तो नहीं होता है। दूसरा क्या, सी होम गुड्स एंड होम फर्निशिंग जनरली, मतलब मास हाँ। लेवल नहीं है तो चलो ठीक है। एनीवे, आई थिंक दिस वी आर ऑल काइंड ऑफ nitpicking, या but fine. I think the point is taken that this also was a dicey, iffy question. Huh? Which of the following best conveys the main point of the last paragraph? तो last paragraph में क्या लिखा हुआ भाई? As a trend, some users have turned it into competition with video of women. We have all our version. Instead, she hopes the trend will all be emotionally durable and meant to last. है ना? तो मतलब आप इमोशनली ड्यूरेबल चीजों को देखिए। ठीक है भाई, देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। A sustainable consumption is practiced to reduce personal environmental impact. मिनिमलिज्म इज एम्ब्रेस्ड, मिनिमलिज्म कहाँ से आ गया यहाँ पे? आस्क व्हाट ट्रूली अपील्स, मेक परचेज दैट सूट योर लाइफ एंड नॉट चेज अ लुक, ये ठीक लग रहा है मुझे। इन्फ्लुएंसर्स आर पब्लिकली क्रिटिसाइज, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे इसमें सी ऑप्शन ठीक लग रहा है। आई थिंक दैट इज द आंसर। सो दिस वाज ओके। सी, आस्क योर सेल्फ लिखा ना इसमें, एंड में इसने लिखा भी है कि होप द ट्रेंड पीपल, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टेप बैक एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट पार्ट इज अपीलिंग एंड व्हाई। तो वही चीज उसने कैप्चर कर दी है कि आस्क फॉर ट्रूली अपील्स एंड मेक परचेज दैट सूट योर लाइफ एंड नॉट चेंज द लुक। तो दिस इज ओके, है ना? तो इसमें हमने देखा कि कई चीजें बड़ी वेग थी, इलॉजिकल सी थी। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, है ना? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट passage here. Few tasks come as thankless as asking a scientific journal editor to correct a bad study. Think it is time to stop this never-ending story. Editor of a diabetes journal said, refusing a request for data behind a study we deem to have fatal statistical errors. As noted by a retraction was, the corresponding author said, sharing data with third party would breach participant consent and European data protection. But such errors would invalidate preliminary positive results for a web-based clinical decision support tool intended. Those are people we were concerned about. तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि कोई भी अगर साइंटिफिक जर्नल का एडिटर है तो उसको अगर आप बोलोगे कोई बैड स्टडी को करेक्ट करो, तो ये बड़ा थैंकलेस जॉब है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं। क्योंकि ये एडिटर जो है वो हमारी रिक्वेस्ट को, एक स्टडी में फेटल एरर्स थे लेकिन वो उसको डेटा ही नहीं दे रहा वो, है ना? तो और उसके पीछे उसने एक्सक्यूज बना दिया कि भाई हम अगर थर्ड पार्टी डेटा देंगे तो ये ब्रीच कर देगा ऑल दिस प्रोटेक्शन रूल्स। तो ये जो एरर्स होती हैं ये बोल रहे हैं कि इनवैलिडेट कर देंगी प्रिलिमिनरी पॉजिटिव रिसर्च को। तो और ये जो डायबिटीज पेशेंट है इनको, इनके लिए हम बड़ी चिंता में हैं। अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली सच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कॉमन। साइंस इन्फॉर्म्स, इन्फॉर्म्स मीन इन्फ्लुएंसेस, है ना? ये इन्फॉर्म्स वर्ड बहुत कॉमनली आता है, इन्फ्लुएंसेस। Our medical care flies us through skies, keeps us safe, yet because just by mistakes can be made. After all, to err is human. Scientific papers are riddled with error. 30% of randomized controlled trials may have been analyzed incorrectly. Psychology, 20% may have inconsistencies. Mistakes happen, cost can be high. Science is self-correcting, often isn't as unforgivably so. For example, misdiagnosed healthy infants with enlarged thymuses, mistakenly linking them to sudden infant death syndrome. Radiation therapy was used on thousands. ऑल्दो एरर वाज रिकॉग्नाइज्ड, नेशनल कैंपेन वार्निंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई साइंस जो है उसके कारण काफ़ी गड़बड़े होती हैं, काफ़ी सारी एरर्स भी होती हैं, और वो एरर्स जो हैं उसको हम रियलाइज करना या उसको हम एक्नॉलेज करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए उसमें, क्योंकि एरर को उन्होंने 1940 में रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन इसकी वार्निंग जो गई वो 1977। तो जस्ट इमेजिन व्हाट हार्म दे हैव डन इन दीस 37 years. They've caused over 10,000 deaths. साइंस सीरियस एरर्स अगर सोशल साइंसेस, तो बोलता है केवल साइंस में ही नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी होता है। Published influential research suggesting countries' economic growth declines when debt exceeds 90% of GDP. Broadly cited by political leaders, this finding supported global austerity policies. Independent researchers found significant calculation errors, omitting key data from 5 countries, reversing the findings to show growth increase, not decline. तो किसी ने कहा भाई आपके देश की डेट जो है अगर 90% तो जीडीपी हो गया तो आपकी ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसके कारण काफी कंट्रीज में ऑस्टेरिटी पॉलिसीज और काफी सारी चीजें आ गई। बाद में पता पड़ा कि इसमें तो बहुत सारा डेटा गलत था, कैलकुलेशन एरर कर गई, और एक्चुअली 90% ऑफ जीडीपी की डेट होने के बाद भी आपकी ग्रोथ इंक्रीज हुई है, डिक्लाइन नहीं हुई है। राइनहार्ट एंड ब्रोगॉफ एक्नॉलेज द एरर बट आर्ग्यूड अगेंस्ट अदर क्रिटिसिज्म्स एंड मेंटेन देयर फाइंडिंग जनरली हेल्ड। फिर भी वो मान नहीं रहे थे वो। दिस केस हाइलाइट्स कॉमन irresponsibility, authors failing to proactively disclose data, editors not requiring its availability. Had data been fully shared, errors might have been corrected sooner. इसमें एक और ऐड कर सकते हैं हम
that the content creators and reviewers at IMS did not acknowledge their errors despite it being discussed in detail in a 2-hour session. This has caused great disservice to the CAT preparing community. Do you agree with my statements? We can add one paragraph here. All those who agree, please raise your hands. Okay. So they are doing a great disservice to community by not even opening a discussion or discourse or debate. Right? Their videos are just one way monologues which justify whatever answers they want to give. Right? Not like us where we discuss and debate. And egregious SEGA involved falsification in Alzheimer's and Parkinson's research. अब देखो मतलब see why I feel that these passages are patchy and kind of cobbled from different paragraphs. अभी आपने पहले साइंस की बात करी है ना, मेडिसिन की बात करी, आपने थेरेपी वगैरह की बात करी, then you came to social sciences and then again you went back to Parkinson's and medicine and all these things. Yes, Akshita. So I feel their passages के topics are good. It's very current. बट ये लोग ना एक ही पैसेज में सब इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. नथिंग इज कनेक्टेड एज सच. एक ही पैसेज में 3 to 4 आइडियाज आर गोइंग टुगेदर एंड डू नॉट हैव अ लिंक. तो उसकी वजह से क्वेश्चंस में माइंडसेट एक क्लियर नहीं बैठ पा रहा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. दैट इज द प्रॉब्लम सारे पैसेज. बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने. बिकॉज व्हेन आई एनालाइज सीएल एंड आई एनालाइज आईएमएस एंड टाइम, आई फाइंड आईएमएस के जो टॉपिक्स होते हैं पैसेज के बिल्कुल करंट होते हैं, कंटेम्प्रेरी होते हैं, एग्रीड, नो डाउट. सीएल के तो बिल्कुल ही मतलब आई डोंट नो व्हाट लेवल देखो. एंड टाइम ऑल्सो, टाइम के तो कंटेंट ही डेटेड है, टाइम के तो पैसेजेस रिसाइकल्ड होते हैं. आई कैन शो यू. अभी जो एमकैट सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे पैसेज मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ कि ये पिछले 3 साल में कब कब, मतलब जैसे अभी कैट 25 है तो कैट 22 में भी वही पैसेज आते थे. एम कैट में काफ़ी सारे, तो कैट 19 में भी फिर वही आते थे. तो मैं आपको निकाल निकाल के दे सकता हूँ. तो इसलिए मैंने उसको रिव्यू करना भी छोड़ दिया है बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट साइकिल. सो द पॉइंट इज कि पैसेजेस कंटेम्प्रेरी इनके हैं, नो डाउट, आई गिव देम दिस. बट एज यू राइटली सेड कि अब जैसे यहाँ पे साइंस चल रहा है, यहाँ पे अब सोशल साइंस आ गया, फिर से साइंस ले आया यहाँ पे. egregious error involved falsification in research by this following a government. Maslia was guilty of misconduct to retracted investigation reported 23 impacting therapeutic. Many of us seen loved ones suffers of this tragically. Current treatment offer limited despite. इससे क्या मतलब है, मतलब इस पैराग्राफ को जस्ट बीच में घुसेड़ने का क्या मतलब? Just one more example you are giving. Mark resigned after several papers contained manipulated images. Though exonerated personally, the review concluded he failed to decisively correct mistakes. Case highlights the dangers when senior scientists don't hold scientific integrity. Delays in correcting known errors harm public trust in science, stalls progress. Scientists in general must review. तो मतलब क्या है, आपने वहाँ साइंस किया, फिर सोशल साइंस आ गया, फिर ये इस पे आ गया, वापस इस पे आ गया. तो इट्स लिटिल इनकोहेरेंट. एंड ऑफ पैसेज, एंड द पैसेज इज फुल ऑफ द एग्जांपल्स ओनली ऑफ दीज इंसिडेंट्स. दैट्स इट. कोई मतलब कंक्लूजन तो निकाला ही नहीं उसने कि भाई ये चीजें. अब कंक्लूजन निकालने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए उसने. By stating such irresponsibility is too common, the author implies that scientists such irresponsibility is too common. ये कहाँ लिखा हुआ है? पहले तो ये ढूंढो. मतलब see this is, ये यहाँ लिखा हुआ है. Unfortunately sir, such irresponsibility is too common, है ना. तो इस तरह की जो irresponsibility है, तो scientists and journals intentionally conceal data, ये तो गलत है. इंटेंशनली कंसील डेटा ऐसा तो कहीं नहीं है. टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट. सिस्टमिक नेग्लिजेंस इन करेक्टिंग साइंटिफिक एरर्स सीरियसली होल्ड्स बैक प्रोग्रेस. ये ठीक है, लॉजिकल है. ऑथर्स फ्रीक्वेंटली फैब्रिकेट रिजल्ट्स टू अचीव इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस, ऐसा तो कहीं नहीं बोला है पूरे पैसेज में. साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन लैक मैकेनिज्म दैट इंश्योर फीडबैक एंड ट्रांसपेरेंसी, ऐसा भी नहीं बोला है. तो इसमें सिर्फ यही एक जस्टिफाइड है. तो बिकॉज ऑल ऑप्शंस आर इररिलेवेंट, इलॉजिकल. According to the passage, scientific papers are riddled with errors for all the following reasons except delayed acknowledgement by errors by authors and institutions. ये तो बोला है इसने कई जगह पे, डिलेड एरर्स, डिले कर देते हैं, है ना. कई जगह पे उसने 2-3 जगह पे बताया है. डिलेज इन करेक्टिंग नोन एरर्स हार्म पब्लिक ट्रस्ट इन साइंस. सॉल्व, तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये तो दिया हुआ है. Editors' reluctance to mandate data transparency from authors. ये दिया हुआ है क्या? Editors' reluctance to mandate data transparency.
ये कहाँ दिया हुआ है? अम, हम्म, ये दिख रहा है क्या? डेटा प्रोटेक्शन रूल्स है। दो exonerated personally dangers don't uphold scientific integrity. ये दिया हुआ है क्या ये? Editors' reluctance to mandate data transparency from authors. Absence of mechanisms within journals to detect manipulated data. ये तो कहीं नहीं दिया हुआ है ना, ये तो कहीं नहीं दिया हुआ है। तो देखो ये अब मुझे नहीं अभी मिल रहा है। एडिटर्स रिलक्टेंस टू मैंडेट डेटा ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ है क्या वैसे? कैन एनीवन टेल मी वेयर इज इट रिटन? सर पैरा थर्ड लास्ट लाइन एक बार चेक कर लो। Proactively disclose data. This case highlights common irresponsibility, authors failing to proactively. And editors not. Good. Sorry, I was not able to figure it out where it was, and it is there. Had data fully been shared, errors might have been corrected sooner. Yes, so ये दिया हुआ है कि editors reluctance to mandate data transparency, है ना? Proactively disclose data. तो ठीक है, this is given here. Okay, fine, fair enough. Absence of mechanisms within journals to detect manipulated. ये नहीं दिया हुआ है ना? This looks to be okay. Researchers unwillingness to proactively share complete data. ये दिया हुआ है क्या? अनविलिंगनेस ये लिखा हुआ है ना शायद इसमें। कि कहाँ है? अ, यही प्रॉब्लम है ना इस तरह के क्वेश्चंस में। रिसर्चर्स अनविलिंगनेस टू प्रोएक्टिवली शेयर कंप्लीट डेटा। सर जो आप एग्जाम्पल बता रहे थे कि एक रिसर्च पेपर में था, फिर उसको 35 हाँ ईयर्स तक उसमें कर सकते हैं ना इन्फर, 30 ईयर्स वाला। हाँ ये इसमें हाँ, इसमें इन्फर कर सकते हैं ना। नहीं, इसमें एरर, ये तो एरर की बात है कि एरर रिकग्नाइज नहीं की गई। अनविलिंगनेस टू प्रोएक्टिवली शेयर ये एक्चुअली यहीं पे ही है ये। नहीं, लेकिन ये ऑथर्स के लिए है। अच्छा, ऑथर मतलब वही रिसर्चर ही होगा। ठीक है, चलो ओके फाइन। सी वाज द करेक्ट आंसर। अगेन नॉट अ गुड क्वेश्चन, बट सी इस तरह के क्वेश्चन छोड़ ही देने चाहिए, क्योंकि आपको अगर इतना टाइम लगेगा इनको सबको देख के इसमें से, मतलब दिस एक्चुअली पैसेज अगर वो तीन करते हैं ना तो दे शुड हैव लेफ्ट दिस पैसेज। The examples in the passage highlight scientific irresponsibility in all of the following ways except. अब देखो सेम ही टाइप के क्वेश्चन बार बार दे रहा है वो, क्योंकि इसने यहाँ चार एग्जांपल दे दिए, तो उसी एक एग्जांपल्स के क्वेश्चन की चारों में जाके ढूंढो आप। Deliberate data manipulation in influential research fields. Deliberate data manipulation in influential research fields, ये दिया है क्या? Suppression of public warning despite knowledge of, ये तो दिया हुआ है फर्स्ट उसमें। मिस एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज विद सीरियस मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज, ये भी शायद यहाँ एंड में दिया हुआ है। मिस एप्लीकेशन, नहीं मिस एप्लीकेशन तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, कहीं और भी दिया हुआ है। विथ होल्डिंग ऑफ एरोनियस रिसर्च बाय एडिटर्स एंड रिव्यूअर्स, ये तो दिया हुआ है कहीं ना कहीं, दिया हुआ है क्या? विथ होल्डिंग ऑफ एरोनियस रिसर्च बाय एडिटर्स एंड रिव्यूअर्स, यही आंसर बताया गया है। आई डोंट नो। हैड सच डेटा बीन फुली शेयर्ड, एडिटर्स माइट हैव करेक्टेड सूनर। यहाँ क्या लिखा है? withholding of erroneous research by editors and reviewers। बताइए भाई, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, इसमें सर आंसर क्या दिया हुआ है? मैनिपुलेशन वाला शायद लास्ट पैराग्राफ में था एक। क्या डेटा, डिलिबरेट डेटा मैनिपुलेशन इन इन्फ्लुएंशियल रिसर्च फील्ड्स, यस। मैनिपुलेटेड इमेजेस, है ना? यही बोलो ना, हाँ, फेल टू करेक्ट डिसाइड। करेक्ट। चलो ये तो दिया हुआ है ना, डिलिबरेट डेटा मैनिपुलेशन। सप्रेशन ऑफ पब्लिक वार्निंग्स, ये भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। सप्रेशन ऑफ पब्लिक वार्निंग्स ये दिया हुआ है, ठीक है। मिस एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज विद सीरियस मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ये यहाँ से बोल सकते हैं हम एक्चुअली, ये सब जो इस वाले से बोल सकते हैं, है ना? तो करेक्ट आंसर एक्चुअली डी ही हो गया।
विथ होल्डिंग ऑफ एरोनियस ऐसा नहीं बोला, विथ होल्डिंग ऑफ डेटा जरूर बोला हुआ है, विथ होल्डिंग ऑफ डेटा बट नॉट एरोनियस रिसर्च। ठीक है, तो इसलिए डी ठीक है। If a new scientific journal adopted all of the author's recommendations with the following outcomes would occur. Research findings would be less prone to distortion. Volume of would decrease. ऐसा तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम बढ़ेगा गिरेगा. Scientists would become hesitant. Reviewers would become playing. ये ठीक है इसमें. But again, I mean, quite a awful passage if you ask me. जो हमें फर्स्ट और सेकंड पैसेज फिर भी ठीक लगे थे, बट अगर थर्ड और फोर्थ देखोगे तो आप प्रिटी pathetic. मतलब इसमें तो you will spend a lot of time actually in this passage looking from here, there and everywhere कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, and totally incoherent. So quite a horrible passage. Anyway, let's go to the summary now. Electro-agriculture replaces sunlight with electricity to support plant growth by converting CO2. Process relies on electrolysis, which uses electric current. Basic electrolyte doesn't provide enough carbon, so new study tandem electrolysis कर दिया वहाँ पे. So tandem electrolysis enables the conversion of CO2 into acetate which plants grow, offering a more efficient process than traditional photosynthesis. देखो इसमें ये इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर का नाम ही नहीं आया इस ऑप्शन में. Whereas to my mind, electro agriculture is the most important thing. कि पूरा जो ये describe किया हुआ है, this is about electro agriculture. So that name should be there in the summary. He has not even mentioned that electro uh, agriculture, which is why this is wrong. By replacing sunlight with electricity, electro agriculture uses electrolysis to create acetate, which plants convert into essential compounds for growth. ठीक है, इस पूरा को Electro agriculture uses electricity to support plant growth by generating acetate through tandem electrolysis. यहाँ पे electrolysis कह दिया इसने और यहाँ पे tandem electrolysis कहा है इसने. Obviously, tandem electrolysis is better, providing an efficient alternative to photosynthesis. So this looks fine, right? इसमें ये भी बता दिया कि this is more efficient. I'm just coming to you, Ashish. New approach in electro agriculture. New approach in electro agriculture ये तो बिल्कुल ही गलत है. Electro agriculture ही ये नई approach है. उसमें कौन सी new approach आ जाएगी? This is totally wrong. Correct answer is C here. Yes, Ashish. सर फर्स्ट वाले में जैसे कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में कि इट्स ऑफरिंग अ मोर एफिशिएंट प्रोसेस देन ट्रेडिशनल फोटोसिंथेसिस, जबकि ऊपर कह रहा है इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर रिप्लेसेस सनलाइट विद इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटर है नहीं है ये थोड़ी इन्फर कर सकते हैं. मैंने ट्रेडिशनल से कंपैरिजन के चक्कर में इसको एलिमिनेट करा था एक को. देखो ये लिखा है ना यहाँ पे कि significantly boost the efficiency of acetate production, making it a more viable nutrient source for plants. So this way you can say that it's a more efficient process. जैसे यहाँ पे भी लिखा ना providing an efficient alternative to photosynthesis. यहाँ more efficient नहीं लिखा उसने, तो this is इसके बेसिस पे मत करो उसको बाहर. इसमें बेसिकली उसने वो यूज ही नहीं किया है ना इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. This option suggests that tandem electrolysis is the main idea here, whereas the main idea here is electro agriculture, जिसमें कि tandem electrolysis को यूज करा जाता है प्रोसेस को, है ना. हाँ जी सर, ठीक है. ठीक है. यस कुशाग्र. सर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव तो मतलब वही हो गया ना कि मोर एफिशिएंट देन फोटोसिंथेसिस. हाँ फिर नहीं तो क्या सर तो नहीं मतलब सर वो चीज वही मिली नहीं थी उसमें कि मोर एफिशिएंट कहाँ पे लिखा ये है ना मोर वायबल, तो इसलिए बोल सकते हो आप एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव. गलत नहीं है ना ये. आपने कौन सा मार्क कर दिया है? सर मैं सी और डी में कंफ्यूज था, मैंने फिर इस एफिशिएंट के चक्कर में डी मार्क कर दिया. नहीं पर डी में तो यार न्यू अप्रोच इन इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर, मतलब कि इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और उसमें न्यू अप्रोच आ गई है, ये तो यही गलत हो गया ना. वो तो बोल रहा है इलेक्ट्रो एग्रीकल्चर रिप्लेसेस सनलाइट विद इलेक्ट्रिसिटी एंड देन बाकी की वही प्रोसेस रहेगी. द प्रोसेस रिलाइज ऑन इलेक्ट्रोलिसिस व्हिच यूजेस इलेक्ट्रिक करंट्स. ओके सर, ओके गॉट इट. तो यहाँ पे भी तो लिखा है इंप्रूविंग प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ एफिशिएंसी, तो इसके चक्कर में मत इसको रूल आउट करो. See, when you are ruling out on a little secondary or sidey kind of idea, then ensure that rest of the things are absolutely in line. है ना? Okay, ये थोड़ा सा difficult थी. Source of contradiction in anti-democratic reaction is that it rests in alliance between oppressor
many other victims. मतलब जो ऑपरेसर और विक्टिम है तो उन्हीं के बीच में एक अलायंस हो जाती है एक तरह से. It relies on the money of the few whose primary interest to protect their power and privilege at the expense of the rest of society. It relies on the votes of many who will by and large suffer under same extractive arrangements. मतलब एक तरह से जैसे पैसे खिलाने वाली बात है कि वो रात को जैसे चुनाव में होता है कि उनको बॉटल दे दी एक और 500 रुपए दे दिए, तो वो कौन कर रहा है? वही ऑपरेसर है उनके और वही विक्टिम है. तो वो उनको अरेंजमेंट दे दिए, उन्होंने पैसे से दे दिए और वो चुनाव जिता दिया. तो यही एक एंटी डेमोक्रेटिक रिएक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन है ये, राइट. To add to the mix, it trades in the ideas of an intellectual class that is parasitic on both sides, sucking money out of oligarchs while offering right-wing identity policies and false hopes. बीच में एक और आ गई क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास, जो कि दोनों तरफ से गेम खेल रही है. The reliance on grievance and fear as the main political binding agent may offer satisfaction of group identity in the short term at least, but its contradictions are easily exposed. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक टाइप की अलायंस बन गई है बिटवीन ऑपरेसर्स और जो विक्टिम्स उनके हैं, और एक और क्लास आ गई है वहां पे, इंटेलेक्चुअल क्लास, जो दोनों के मजे ले रही है. एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स स्टेम्स फ्रॉम अ कोएलिशन बिटवीन पावरफुल एंड द इंटेलेक्चुअल्स. ये तो गलत बता दिया यहाँ पे. बोथ ऑफ whom are resented by the class that suffers the most. बिल्कुल गलत. दिस इज अ ग्रेट डिस्टॉर्शन. एंटी डेमोक्रेटिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वेल्थ ऑफ एलिट्स, द रिसेंटमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेड एंड मैनिपुलेशन ऑफ बोथ क्लासेस. रिसेंटमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेड कहाँ लिखा हुआ है कि इट डिपेंड्स ऑन? ये तो दोनों के बीच में अरेंजमेंट हो गया, अलायंस हो गया. तो रिसेंटमेंट क्या है? ओके, while offering right wing identity and false hopes to the resentful. तो ये इसमें एंटी डेमोक्रेटिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वेल्थ ऑफ एलिट्स, रिसेंटमेंट ऑफ. इसमें ये भी नहीं बताया कि दोनों के बीच में कुछ अलायंस हो गई है, तो इसलिए ये भी गलत. पावर ऑफ एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लाइज इन इट्स एबिलिटी टू यूनाइट विक्टिम्स एंड ऑपरेसर्स थ्रू शेयर्ड ग्रीवेंसेस. तो इसमें यहाँ यूनाइट विक्टिम्स एंड ऑपरेसर्स तो ठीक है, लेकिन शेयर्ड ग्रीवेंसेस क्या है? ये गलत है. इवन एज द अंडरलाइंग कॉन्ट्रडिक्शन रिमेन विजिबल. यहाँ पे ये बाकी सब सही था और इसमें, लेकिन इंटेलेक्चुअल क्लास के बारे में कोई बात नहीं की इस ऑप्शन में. दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल क्लास हियर. एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स आर सस्टेन्ड बाय एन अनईजी अलायंस ऑफ एलिट्स, राइट, मतलब ऑपरेसर्स, एक्सप्लॉइटेड मासेस एंड अपॉर्चुनिस्टिक इंटेलेक्चुअल्स बाउंड टुगेदर बाय फियर एंड ग्रीवेंस. ठीक है, दिस इज स्टिल ओके. नॉट अ ग्रेट समरी बट स्टिल ओके. ऑलराइट, अगेन वेरी इजी पैरा कंप्लीशन, वेरी इजी पैरा कंप्लीशन. इसको हम क्रोनोलॉजी से कर सकते हैं, राइट. ओरिजिनली फाउंडेड इन द 7th century BC. तो अभी BC में हम, ये 0 है, यहाँ 7th century में है. सिटी फ्लरिश्ड, ओवर टाइम इट चेंज हैंड्स. 196 BC में आ गए हम, 196 में आ गए. रीबिल्ट एंड रीबॉर्न. अब ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई है 196 में. सिटी रोज टू न्यू प्रोमिनेंस इन 330, ये 330 CE में. When Emperor Constantine established, this is fortified. फिर ये next 1100 years तक रहा है, ये 1450-40 तक रहा है. तो ये क्लियर क्रोनोलॉजी है और उसको देखते हुए ये थर्ड में आएगी. थर्ड इज द राइट आंसर. इजी है, मतलब तीनों पैरा कंप्लीशन बहुत इजी दिए थे उन्होंने. ओके, नाउ this is a pretty pathetic, stupid kind of a. At its core, the abundance agenda overlooks the importance of public input. Zoning involving communities can lead to better land. These processes कौन सी हैं? So I don't know. See, some explanation has been given and some this thing has been made, but I don't know. This is a useless question. Second option mark किया हुआ है. More broadly, agenda reflects unwillingness to address, but I could not really find a meaning in this whole passage. Zoning can separate industrial activities, ensure that new homes are supported. These processes मुझे कहीं मिली नहीं. Involving communities can lead to better land use decisions and act as democratic counterbalance. इसी को प्रोसेस बता दिया गया है कि 3 के बाद 5 आएगा और उसके बाद में फिर 4 आएगा और फिर उसके बाद में मतलब 1 से स्टार्ट करती है. I don't know. So sorry, pretty incoherent and useless para odd one out. First para odd one out was pretty sensible, logical, but this is again not. So that brings us to an end. As we could see, quite a few questions. At least we were able to identify 5, 6, 7 questions which were not
तो इनिशियली 4-5 लगे थे मुझे, और 1-2 और लगने लगे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं। मे बी इफ यू delve deeply we'll find it more, but ठीक है. So the idea is at least you got exposed to, so don't unnecessarily blame yourself if you get fewer marks in this. As right, Mahi also had written in the morning in the group that एक में उसको 60 आ गए, किसी में 21 आ गए, तो this kind of variation is not good. Okay. All right. So with that, we come to an end to the explanation.